Ankit ji, let's start. Okay. Good evening and a very warm welcome to all of you. Myself, C. Ankit Agrawal, the moderator for today's VCM. Well, Moradabad branch has been doing webinars and virtual CP meetings almost every week now, and this is a good thing. And the best part is that apart from professional updates and learning, awareness about the physical health and nutrition of the members is also being broadened through these meetings. So today, in today's VCM also, we have two topics, two sessions. The first one is by Dr. Payal Agrawal on food habits and nutrition during COVID times for healthy body. And the second session will be by CA Anil Mathurji on issue in certification of provision and projected financial statements. So firstly, I would like to welcome the officials of the branch, CA Amit Agrawal ji, Secretary of Moradabad branch. I think he has joined. CA Vijay Bansal ji, the Vice Chairman, and CA Mani Gupta ji, the Chairperson of the Moradabad branch. Welcoming you all. And I now welcome Dr. Payal Agrawal, our speaker for the first session. And also, I also welcome CA Anil Mathur, sir, our speaker for the second session. Welcome, sir. I request the Chairperson, CA Mani Gupta ji, to welcome all the members and participants and the speakers. Ma'am, over to you. Thank you, Ankit ji. Happy evening to all and happy World Environment Day. Today is World Environment Day. Yeah. Welcome Anil ji, welcome Payal ma'am, and we are glad that you people are here. And I also welcome all the participants, invitees that have joined our meeting. Because of you people only, we are encouraged. Moradabad branch is encouraged to do all these meetings. Thanks you all, and without wasting much of the time, I ask Ankit Agrawal ji to please take forward the meeting. One more thing, I will request all the invitees, please mute yourself and video भी close कर दीजिए आप लोग अपने क्योंकि जो शेयर होगी हमारी पीपीटी तो उसमें प्रॉब्लम होती है. Okay, invitees, thank you. Ankit ji, over to you. Okay, ma'am. Thank you. So, since both the topics are very important, we now proceed for our first session on food habits and nutrition during COVID times for healthy body by Dr. Payal Agrawal. I will just give a brief intro of the speaker. Dr. Payal Agrawal is specialized in clinical nutrition medicine and sports nutrition. She is founder director of Eating Fit. She is a government recognized health coach, internationally EREPS registered member, and NCSF certified strength training coach. She is also India Books of Record holder author for book Eating Fit. She has been felicitated with the National Women Award in the year 2018 and Jaipur Ratan Samman Award in year 2019. I now request Dr. Payal Agrawal to kindly enrich our members with a knowledge and experience on food habits and nutrition. Over to you, ma'am. Yeah, good evening, everyone. First, thanks to Moradabad branch, along with everyone whom connected here. Am I audible, everyone? Yes, ma'am. Yes, perfectly. Yeah. Today, let's discuss on food habits and nutrition during COVID times for healthy body. Right? सबसे पहले आज जो कोविड टाइम चल रहा है उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी. सबसे पहले हम लिटिल एब्रीविएशंस के बारे में बात करेंगे जो हम बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं. राइट? उसमें सिंपल सा ये है कि कुछ गवर्नमेंट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो हम फॉलो भी करते हुए आ रहे हैं. राइट नाउ भी हमें फॉलो करने हैं और आगे भी हमें फॉलो करने हैं ना. तो उसके अंदर सिंपल सा ये है कि जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स हम डेली लाइफ के अंदर डेली फॉलो कर रहे हैं, जैसे wearing the mask, sanitize yourself, take care of the sanitization, social distancing, stay at home, if necessary, go outside. बट सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या हम इसको राइट वे में फॉलो कर रहे हैं, क्या हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं. मैं थोड़ा सा 1 to 1 इलैबोरेट करूंगी. उस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना है. अभी बात आती है वेयरिंग अ मास्क. मैंने कई बार देखा है कि हम मास्क को वेयर तो करते हैं बट एज अ कम्युनिकेशन टाइम जब हमारा कम्युनिकेट हो रहा होता है किसी से तो उस दौरान ना हम अपना मास्क जो है नीचे कर लेते हैं. राइट? तो सामने वाला भी नीचे कर लेता है और हम भी अपने मास्क को नीचे कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है. इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, हम सभी जानते हैं, बट मास्क क्यों नीचे किया जाता है जब हम किसी से बात करते हैं. तो उसका
सॉल्यूशन मेरे पास आया सामने वाले से, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन था, उसने मुझे बताया कि मैम जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम एक दूसरे का फेस नहीं देख पाते, तो हम अपना मास्क नीचे कर लेते हैं। दिस इज नॉट अ राइट, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। ये पहले भी हमको पता है कि ये बड़ा संक्रमण वाली डिजीज है, तो इसके लिए हम अपना मास्क चढ़ा के रखेंगे, मास्क को नोज से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, मुंह और नाक दोनों जो है ढका हुआ होना चाहिए जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। तो वियरिंग अ मास्क, उसके बाद सैनिटाइज योरसेल्फ। सैनिटाइजेशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है, मैंने कई बार देखा है एक्चुअली कि 1 to 1 मतलब ऐसी साइकोलॉजी बैठ गई है कि हम नॉर्मल अपना एक एक सेकंड हुआ या एक एक मिनट हुआ हम जस्ट जाके अपना हैंड वॉश कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके लिए सिंपल सा ये है कि आप अपना एक प्रॉपर टाइम लिमिट करें कि हाँ, मुझे अगर किसी चीज को मैंने टच किया जो मेरे आउट ऑफ फैमिली है या फिर आउट ऑफ थिंग है, जैसे अगर बाहर से किसी ने सामान ला के रखा या फिर कोई ऐसा सामान है जिसको मैंने बहुत टाइम से छुआ नहीं हूँ, उसको अपना फिर सैनिटाइज करना है। नहीं तो एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि मुझे दिन में इतनी बार सैनिटाइज करना है। ऐसा नहीं है कि हर एक एक सेकेंड में, हर एक एक मिनट में आप जाके हैंड को सैनिटाइज कर। थर्ड वन है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बहुत जरूरी है, बट सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा साइको नहीं लेना है। उसके अंदर सिंपल सा मैं बहुत छोटी छोटी सी चीजें इन बिटवीन थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। इन बिटवीन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें की हम गलती कर रहे हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, ठीक है। उस चीज को क्योर करना बहुत जरूरी है। अगर उस चीज को आप लोग क्योर करेंगे तो शायद हम बहुत बड़ी हानि होने से बच जाए। तो सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में मैं बता रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग का सिंपल सा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेयरिंग अ मास्क। आप प्लीज अपने मास्क को ऑलवेज कैरी आउट करें, अपने साथ में रखें, ऑलवेज पहन के रखें। जहां आपको लगता है आसपास पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है या यू अलोन, आप अकेले हैं, उस टाइम पे अगर आपका दम घुट रहा है तो आप हटा सकते हैं। उसके बाद है स्टे एट होम। प्लीज अपने घर पे रहिए। काफी टाइम से होता आ रहा है ये, लॉकडाउन भी इसीलिए लगाया जाता है। तो सारी चीजें हैं, तो आप अपने प्लीज बहुत ज्यादा नेसेसरी हो तो घर के बाहर निकलें, ठीक है। ये कुछ बेसिक एप्लीकेशंस थी जो मैंने आप लोग को बताई, आप लोग को पता भी है, बट अभी भी कुछ लोग इस चीज को लेके अवेयर नहीं है कि इसका राइट तरीका क्या है। और इसके साथ मैं एक और चीज बोलूंगी कि ये चीज एक्चुअली अब बच्चों में भी फैलती जा रही है। तो प्लीज आप जो करेंगे वही सेम बच्चे कर। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्लीज अपने बच्चों को आप वही सीखेंगे वो जो आप खुद कर रहे हैं। तो प्लीज सबसे पहले शुरुआत आपसे कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि कुछ अगर मैंने ये चीजें बताई है तो, और बताई जा भी रही है तो क्यों बताई जा रही है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ठीक है। हो सकता है उसके बाद में भी हो जाए, बट एक रहेगा कि आप अपने साथ में लेके चल रहे हैं और अगर राइट तरीके से चीजों को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक सेल्फ प्रिकॉशन अपने साथ में ऑलवेज लेके चलेंगे। तो वो एक क्योर का बहुत बड़ा बड़ा साइन है कि हमें किसी बड़ी हानि होने से बचा लेगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि आज इस टाइम पे हम में से बहुत लोग हैं जिन्हें कोरोना या कोविड टाइम, ठीक है, से या तो निकल गए या फिर या जिन्हें कोविड हुआ ही नहीं है। जिन्हें नहीं हुआ है, ब्लेस्ड, हम लोग बड़ा ब्लेस्ड है या आप लोग बड़ा ब्लेस्ड है। जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है, जिन्हें कोविड नहीं हुआ है और जो इस टाइम से निकल भी गए हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा, और जो इस टाइम पे हैं उन लोग को भी मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज डोंट बी सो पैनिक। ये हम में से, आप में से किसी को भी हो सकता है, तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। तो प्लीज थोड़ा सा बहुत जल्दी से ठीक हो जाओगे जो लोग इस टाइम पे चल रहे हैं, और जो निकल चुके हैं उन लोग को भी थोड़ा सा अपना प्रिकॉशन साथ में। ऐसा नहीं है कि आप एक बार निकल चुके हैं तो आपको दोबारा नहीं होएगा, आपको दोबारा भी हो सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा साथ में प्रिकॉशंस प्लीज लेके चलो, क्योंकि जो एक ही प्रोसीजर है जो हो चुका है जिनको, ठीक है, वो भी प्लीज प्रिकॉशन लेके चलो। जो ऑन ड्यूरिंग चल रहे हैं उन्हें तो प्रिकॉशन रखना ही है, और जिन्हें नहीं हुआ है प्लीज इसको फन मोड में मत लो, ठीक है। इसको हमें फन मोड में बिल्कुल नहीं लेना, हमें भी हो सकता है, कोई भी इससे बचा नहीं है। आज ही कल हो सकता है, अगर आप बच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने आप को ब्लेस समझिए कि शायद आपकी इम्यूनिटी की वजह से आप बच गए। शायद आपकी बॉडी लैंग्वेज का यहाँ पे मतलब ये है कि हमारा जो एक बॉडी का स्टैमिना है, जो बॉडी की फंक्शनिंग है, वो इतनी वेल है कि उसने एक संक्रमण वाली डिजीज को हमें अडॉप्ट ही नहीं किया।
अगर आज अडॉप्ट नहीं करेगी तो हमें नहीं होगा। तो प्लीज थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। मैं यहाँ सारे फेसेस को बहुत ज्यादा कोलाबोरेटली का मतलब ये है साथ में लेके चलोगे, चाहे वो प्री कोविड हो, चाहे वो जिन्हें नहीं हुआ हो, या फिर प्री कोविड में हो, जहाँ पे ऑन ड्यूरिंग कोविड में हो, जिन्हें हो रखा है अभी और वो मेरा मैसेज सुन रहे हैं, और या फिर पोस्ट कोविड वाली सिचुएशन। ठीक है, तो सब चीजों को यहाँ पे हम कोलाबोरेटली लेके चलेंगे। अब बात आती है पॉइंट की कि हमारा टॉपिक तो कुछ और है आज का हमारा टॉपिक है फूड हैबिट्स एंड द न्यूट्रिशन। हम बिल्कुल उस पर आएंगे, बट उससे पहले मैं बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो है एलैबोरेट इसलिए कर रही हूँ, शायद हो सकता है मेरी छोटी छोटी चीजें समझाने से आपके बड़े बड़े कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, और या फिर जो ऑन ड्यूरिंग है या फिर पोस्ट कोविड वाली सिचुएशन के अंदर है, उन्हें ऐसा है कि हमें हो तो गया है, बट एक रेक्टिफिकेशन जो होना चाहिए प्रॉपर, वो रेक्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा। आज भी हमारे घुटने के नीचे पेन है, या फिर हमारा मतलब हम वैसे नहीं चल पा रहे हैं, वैसे एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, या एक बॉडी में एनर्जी सी चली गई है। काफी लोगों के क्वेश्चंस डे बाय डे मेरे पास में रहते हैं, तो इसीलिए शायद मैं सब चीजों को कोलैबोरेटली लेके चल रही हूँ। मैं अपने टॉपिक को जरूर स्क्रैच करूंगी जो आज का है, डोंट बी वरी। इसके लिए बहुत ज्यादा वरी नहीं होना कि हम अपने टॉपिक पे आ ही नहीं रहे या हम अपने टॉपिक के बारे में बात ही नहीं कर रहे। आप प्लीज 5 मिनट्स का मुझे टाइम दो, मैं अपने टॉपिक पे जरूर आऊंगी, बट उससे पहले बहुत छोटी छोटी सी चीजें मैं बताऊंगी जो आप लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल है। अब उसमें सबसे बड़ी चीज ये आती है कि इसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स हम लोग डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, डेली टीवी तो इतना देखते हैं कि हमने अपनी साइकोलॉजी, हमारा माइंडसेट जो है काफी इस चीज को लेके कर लिया है कि हम अवेयर हो चुके हैं, हमारे पास सारी नॉलेज आ चुकी है। टुडे मतलब इतनी सारी डेथ हो रही है कोविड-2 के अंदर डे टू डे, ये क्यों हो रही है? हम भी बड़ा स्कैर्ड हो जाते हैं इस चीज को लेके कि ये हो क्या रहा है। आफ्टर ऑल हम लोग ने इतनी नॉलेज ले ली है, हमें सब कुछ पता है, बट फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि सबसे पहले आपसे शुरुआत की जाए या मुझसे शुरुआत की जाए। तो उसके अंदर सिंपल सा यही है कि अगर हम किसी भी दिन किसी भी टाइम हमें लगता है कि हमें फीवर है या फिर कोई और सिम्टम है, ठीक है, आई एम ऑडिबल, या आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, या इसके अंदर सिंपल सा ये है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई भी सिम्टम है, चाहे वो नोजिया एंड वॉमिटिंग हो, चाहे कोल्ड एंड फ्लू हो, चाहे फीवर, एक नॉर्मल में और एक अपनॉर्मल में हमें कहीं ना कहीं साइन मिल जाता है इस चीज का कि हमें कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, प्लीज पीछे मत हटिए, कोविड टेस्ट जरूर करवाइए। अगर ऐसा कोई सिम्टम होता है आपको तो कोविड टेस्ट कराएंगे तो आप बाकी लोगों को संक्रमित नहीं कर पाएंगे। और उसके अंदर सिंपल सा ये, यहाँ इंडिया में कोविड टेस्टिंग की रिपोर्ट RT-PCR। अब बात ये भी पूछा जाता है मेरे से कि हम क्या करवाएं कोविड टेस्ट के लिए, हम कहाँ जाएं? तो प्लीज आपको RT-PCR टेस्ट करवाना है, आप अपना RT-PCR टेस्ट करवाओ, और उसकी रिपोर्ट जो है वो 2-3 दिन के अंदर आती है, इतनी फास्ट नहीं आती। और अगर आपको ये चीज लग चुकी है कि मुझे कोविड टेस्ट मैंने करवाया है और मेरा चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, आप उस चीज में एक्चुअली अपने आप को प्लीज क्वारंटीन कर लीजिए 2-3 दिन के लिए सही। जब से आपकी रिपोर्ट नहीं आती है उससे आप लोग आसपास की फैमिली मेंबर्स, अपने आसपास के अपने नेबर्स, उनको प्लीज संक्रमित नहीं कर पाएंगे या इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके लिए भी काफी हेल्पफुल है। हेल्पफुल कैसे है? यही वो लोग हैं जो हमारी हेल्प करने वाले या सपोर्ट करने वाले या हमारा ध्यान रखने वाले, तो हमें इनका ध्यान रखना पहली प्रायोरिटी बनता है। तो प्लीज आप इन लोगों का ध्यान रखिए, अपने आप को क्वारंटीन कर लीजिए। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो भी आप लोग को 1 वीक तक क्वारंटीन रहना है, जैसे आपने 3 दिन 2 दिन 1 दिन खुद को रखा। और अगर पॉजिटिव आती है तो उस दौरान आप अपने आप को प्लीज सेल्फ क्वारंटीन के अंदर थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि बैक टू बैक आपको हो सकता है फीवर आए, फीवर तो जरूर आएगा आपको। तो उसके अंदर सिंपल सा ये है कि बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना। अगर नेगेटिव आ जाती है तो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना, और अगर पॉजिटिव आती है तो बहुत ज्यादा प्लीज पैनिक नहीं होना। इसके अंदर मैंने पहले भी बताया, इसके अंदर डरने वाली सिचुएशन नहीं है। ये एक ऐसी महामारी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल चुकी है,
ये आज ही तो कल सबको होनी है, कई लोग इस चीज से गुजरना इन द सेंस ऑफ कई लोगों को हो चुकी है, ठीक है। और जिन लोग भी पास आउट हुए हैं वो कुछ ना कुछ या तो सेल्फ मिस्टेक की वजह से हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं अनअवेयर की वजह से हुए हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी बॉडी ने उनका सपोर्ट नहीं किया हो, इस वजह से। इसीलिए शायद मैं आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि इसके लिए सिंपल सा ये है कि अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो आप डे 0 से स्टार्ट करते हैं। जिस दिन हमारी रिपोर्ट आती है उस दिन मैं डे 0 मानती हूँ उसको, जब से हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज खुद को प्रिपेयर कर लो, बाकियों को आप आराम से बता दो कि मुझसे दूर रहना है जब तक मैं क्वारंटीन हूँ। किसी के भी, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे कोई भी हो, कांटेक्ट में नहीं आना है, मतलब नहीं आना है। आप चाहे फोन पे कांटेक्ट में रह सकते हैं, ठीक है। कई बार ये ऐसा होता है कि कोई नहीं, फैमिली मेंबर है, हम लोग सपोर्ट करेंगे। मैंने कई बार देखा है, बहुत लाइवली देखा है कि हमारे फैमिली मेंबर है, हम सपोर्ट करेंगे। आप सपोर्ट करिए, बट जो सिस्टम के अकॉर्डिंग है प्लीज उस हिसाब से सपोर्ट करिए। आउट ऑफ सिस्टम जाके प्लीज सपोर्ट मत कीजिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको फीवर आता है, माइल्ड फीवर आता है, बाकी चीजों में ये सोचने की बजाय कि मुझे कोरोना पॉजिटिव क्यों हो गया है, यहाँ पे मैं साथ साथ माइंडसेट की भी बात कर रही हूँ कि कोरोना पॉजिटिव आ गया है, प्लीज नहीं डरना है, बहुत जल्दी से ठीक हो जाओगे। इसके अंदर सिर्फ जो फीवर वाली बात है, मैं बार बार फीवर पे इसलिए फोर्स कर रही हूँ कि अपना फीवर को कंट्रोल रखना है। अगर फीवर आउट ऑफ कंट्रोल होगा, हमने फीवर पे ध्यान नहीं देके सिर्फ दिमाग में ये चीज बसा ली है कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया है, ठीक है, तो फीवर इससे नहीं ठीक होने वाला। आप प्लीज पैरासीटामोल ले लो, हर 6 घंटे के अंदर, मतलब दिन में 3 बार आप पैरासीटामोल ले लो। अगर आपको फिर भी फीवर नहीं जाता है तो उसके लिए आप सिंपल सा 4 बार भी पैरासीटामोल दिन में ले सकते हो, इट डजेंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। दूसरी चीज ये है कि आप प्लीज प्रिस्क्राइब लो डॉक्टर से, वो चीज बेटर है। बट डे 1 to डे 5 मेरे को अपना फीवर ठीक करना है पहले प्रायोरिटी, इंस्टीड ऑफ दैट कि मुझे किसी एंटीबायोटिक्स में या स्टीरॉइड में, जो हम डे टू डे में देख रहे हैं कि होम क्वारंटीन होना। अब ये आता है कि इसमें होम क्वारंटीन होना क्या ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप होम क्वारंटीन हो, बट प्लीज उस टाइम पे इतना ज्यादा वो नहीं लो कि मुझे ये भी लेना चाहिए जिससे मैं 14 डेज तो मिनिमम है इसके अंदर आपको क्वारंटीन रहना ही है। तो बेटर है आप अपना ग्रेजुअली रिकवरी करो, इंस्टीड ऑफ दैट कि आप ये सोचो कि मुझे 2 दिन के अंदर रिकवरी करनी है, ठीक है। उसके अंदर ये है कि आप प्लीज पैरासीटामोल ले लो, किस तरह से लेनी है मैंने ये बताया आपको। उसके साथ साथ मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होना, पहले भी बताया था। रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद भी ये नहीं होना चाहिए कि 2-3 दिन मुझे मिक्सिंग नहीं होना था, उसके बाद मैंने अब मिक्सिंग होना शुरू कर दिया। प्लीज मिक्सिंग नहीं होना है, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमें हमारे टॉपिक पे भी आ रहे हैं। उसके बाद ये है कि आप अपना थर्मोमीटर से प्लीज फीवर को मेजर ऑन करते रहो, उसके अंदर 100 बिलो ही आना चाहिए, 100 अबव जो है वो प्लीज हार्म है, तो वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और अगर आता है तो आप उसके लिए पहले खुद का सेल्फ करो कि ठंडी पट्टियां, जो बहुत एंशियंट टाइम से चलती भी आ रही है, ठंडी पट्टियां जो है वो आप करने की कोशिश करो, आराम से करो। और ठंडी पट्टियों का मतलब ये नहीं है कि भाई 5 मिनट कर ली और स्टॉप, कि मेरा तो बस आ जाएगा फीवर ठीक, ऐसा नहीं होता। ठंडी पट्टियां अगर आपको करनी है तो वैल्यू फॉर टाइम करनी है, आधा घंटा 45 मिनट्स। जब आप इतने टाइम कंटिन्यूशन में ठंडी पट्टियां करोगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद प्लीज थर्मोमीटर से दोबारा लो, हो सकता है कि आपका फीवर ठीक हो जाए। बाकी पैरासीटामोल तो कंटिन्यू लेनी ही लेनी है, डे 1 to डे 5 इसके कुछ फेजेस होते हैं, उस फेजेस के अकॉर्डिंग चलते हैं। उसके बाद भी अगर मॉनिटरिंग के बाद भी, अब जैसे आप डे 5 तक करते हो या डे 4 तक करते हो, मैं इसलिए आपको अवेयर कर रही हूँ कि डे 4 डे 5 तक अगर आप करते हैं, उसके बाद अगर आपका फीवर जो है हो सकता है अपनी लिमिट पे ना आए, डे 2 पे भी ना आए, डे 3 पे भी नहीं आए, तो आप प्लीज कांटेक्ट कर लो डॉक्टर को, ठीक है। बट अगर कंट्रोल रहता है और एकदम से डे 4 जो है बढ़ जाता है, तो पैनिक नहीं होना, आप प्लीज ये करो। और डे 6 में जाने से पहले हमें डे 5 तक की जो मॉनिटरिंग है, या डे 2 की, डे 3 की, कहीं भी जाओगे तो आप अपनी मॉनिटरिंग बताओगे, जो भी आपने मॉनिटर किया है, ठीक है, वो आपको बताओगे तो ज्यादा बेटर रिस्पॉन्ड मिलेगा, इंस्टीड ऑफ दैट की ब्लाइंड करोगे बिल्कुल कि मुझे नहीं पता क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था। तो अपने आप को मॉनिटरिंग करने की आदत डाल लो, बहुत जरूरी है अगर होम क्वारंटीन। उसके साथ साथ ये भी होता है कि क्या मेरे लंग्स पे इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा साइकोलॉजी,
तो हमने खुद ने बना लिए, तो आप प्लीज पल्स ऑक्सीमीटर आपको मेडिकल शॉप पे, किसी भी फार्मेसी शॉप पे मिल जाएगा, आप वो लेके आओ, मेजर ऑन करो। उसमें भी सिंपल सा ये है कि 94 बिलो जो है हार्म होता है, बट इसमें भी बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है। अगर फीवर आता है तो ऑक्सीजन लेवल इतनी जल्दी नहीं गिरता है, उसके लिए भी टाइम लगता है, तो उसकी भी मॉनिटरिंग करते रहो साथ साथ में, ठीक है। अब बात आता है, हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमने बहुत सारा स्ट्रेच किया, वो सिर्फ इसलिए कि आप अपनी मॉनिटरिंग प्रॉपर कर पाए, किसी भी और स्टीरॉइड्स में, एंटीबायोटिक्स में नहीं फंसे, क्योंकि उसमें जाने की बजाय आपको अपनी फीवर पे ज्यादा प्रेशर ऑन करना है कि अपना फीवर जो है आपको ठीक रखना है। उसके बाद आता है फूड हैबिट्स एंड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स फॉर बॉडी हेल्थ। तो इसमें हम, या आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. You're audible. या हैविंग प्रॉब्लम इन बिटवीन ऑफ दैट? जितना भी बताया उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू किसी को? नहीं मैम, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, आगे कंटिन्यू करो। या मैम। या अभी हम हमारे टॉपिक पे आ चुके हैं, जो हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि क्या बताया जा रहा है। शायद बाकी लोग जो गलतियां कर रहे हैं प्लीज आप नहीं करो, और फन मोड में नहीं। आज हमें कोरोना नहीं हुआ है, बट हमें आगे हो सकता है, तो प्लीज इसको बिल्कुल भी फन मोड में रहना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है, ये पूछ के नहीं आती है, किसी को भी कहीं से भी संक्रमित हो सकता है इंसान, और आज हम और आप भी दोबारा भी हो सकते हैं। तो इस चीज को लेके प्लीज थोड़ा सा सिंसियर रहो, डिसिप्लिन रहो, ये चीज बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आप आते हैं फूड हैबिट्स एंड न्यूट्रिशन। ये बेसिकली एक्चुअली हमने बहुत सुना है। अब इसमें ये भी क्वेश्चन उठता है कि हम ऑलरेडी बहुत कुछ लेते हैं, अच्छा लेते हैं, बट इसमें ऐसा स्पेशल हमें क्या लेना है? और बहुत टाइम से आ रहा है कि हाँ, इम्यूनिटी तो हम सबकी स्ट्रांग है, आज अगर हम चल पा रहे हैं, अगर बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि क्या हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मतलब जब से ये कोविड आया है एवरीवन टेल कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर दो। इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है हमारी, बताइए सर, क्या हुआ? इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, एनर्जी नहीं है बॉडी में? नहीं मैम, इम्यूनिटी स्ट्रांग है हमारे घर में मैम, सबको हो गया। आई वाज सेफ, दैट मींस आई हैव एन इम्यूनिटी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर हो, संक्रमण नहीं हुआ हो, तुम अपनी टेक केयर कर रही हो, बट उसके लिए मैं सिंपल से ये कह रही हूँ कि ये प्लीज अपने दिमाग से साइको निकाल दो। हम सभी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आज हम चल पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, जो भी अपनी डेली एक्टिविटीज ऑफ लाइफ है या डेली एक्टिविटीज ऑफ डे है, वो अगर हम कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि इम्यूनिटी में कहीं कोई कमी नहीं है। बात है इसको बेटर बनाने की, चाहे किसी की कम हो, किसी की ज्यादा हो, किसी की मॉडरेट हो, ठीक है। और यहाँ बात कोविड 1 में सिर्फ बात इम्यूनिटी की थी, बट जो कोविड सेकेंड टाइम आया, इसके अंदर इम्यूनिटी की कोई इतनी ज्यादा कॉन्शियस माइंड नहीं है, होनी चाहिए, बट संक्रमण होने के बाद में हमें कैसे डील करना है, प्री कोविड कैसे करना है या पोस्ट कोविड कैसे करना है, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं फूड हैबिट्स की बात करूं, तो टाइमिंग्स का बड़ा ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि एक्चुअली सबका वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, हम अपने घरों से काम कर रहे हैं, या फिर कई लोग ऑफिस भी जा रहे हैं, अपनी अपनी वर्किंग का नेचर है कि कैसा आप लोग का वर्किंग का नेचर है। अगर मैं बात करूं सीए पीपल्स की, तो आप लोग एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सिंपल सा ये टाइमिंग्स का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा टाइम शेड्यूल है जो डिस्टर्ब हो चुका है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है। सोने का, उठने का, बैठने का टाइम जब हमारा डिस्टर्ब हुआ है या अगर हिला है, वर्क फ्रॉम होम में हम वर्क तो करके दे रहे हैं, बट उसके अंदर कोई टाइमिंग शेड्यूल नहीं है, ना हमारा कोई टाइम शेड्यूल है। वर्क फ्रॉम होम में हमें इतनी ज्यादा तो छूट दी गई है कि अब अपना काम चाहे 11 बजे स्टार्ट करो, तो फिर हम उठते ही 10 बजे हैं। तो प्लीज अपने टाइमिंग्स का थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि टाइमिंग शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट बेसिक स्टेप है किसी भी फूड हैबिट्स का। अगर आप अपने टाइमिंग का ध्यान रखेंगे तो हर मील प्रॉपर टाइम पे हो। इस टाइम पे आपको सिंपल सी चीज ये है कि टेक फूड टू हील, नॉट टू हार्म बॉडी। हमें जो भी फूड लेना है, इस चीज को मेरे को अपने माइंड को अडॉप्ट करवाना पड़ेगा
यहाँ पे बात आती है माइंडसेट की भी, कि मुझे अपनी माइंड को अडॉप्ट करवाना पड़ेगा कि जो भी फूड हमें लेना है, टेक फूड टू हील, नॉट टू हार्म दी बॉडी। मेरे को अपनी बॉडी को हार्म नहीं करना, हील करना है। अब मैं कहूंगी कि मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज फन मोड पे मत लो। जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है, मैं बार बार ये मैसेज दे रही हूँ। उसका रीजन ये है कि आज की सिंसियरिटी नहीं है, आज की डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप लोग की टेक केयर करते हुए आज आपको नहीं हुआ है, हो सकता है। और ये चीज एक्चुअली एयर में भी है। ऐसा नहीं है, आप किसी इंसान के अगर कांटेक्ट में आते हैं या फिर किसी थिंग्स के, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के कांटेक्ट में आते हैं तो ही आपको कोरोना हो सकता है। अगर आप बाहर सांस लेने भी जाते हो सकता है कोई भी सेल आके, कम्युनिकेबल डिजीज है, आपको हो सकता है। तो इसको फन में नहीं लो। नहीं होता है तब तक हमें लगता है कि हमें नहीं हुआ है, बट होने के बाद में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हमें खुद में स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हम इस चीज को लेके अवेयर नहीं रहते। इसीलिए बता रही हूँ। उसके बाद ये है कि फूड हैबिट्स में मैंने बताया, अपने टाइमिंग का ध्यान रखना है। जो भी फूड लेना है वो अपनी बॉडी को हील करने के लिए लेना है, ठीक है, हार्म नहीं करना है। क्योंकि अभी इस टाइम पे जहां बात इम्यूनिटी से हम डरे हुए हैं, जहां बात ये डरे हुए हैं कि हमारा शेड्यूल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, तो आप बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो अपने दिमाग में रखिए कि मेरे को अपनी टाइमिंग्स जो है मील के नहीं टाइमिंग डिस्टर्ब, ठीक है। यहाँ आपके वर्किंग टाइम डिस्टर्ब हुए हैं, बट आपकी बॉडी के टाइम डिस्टर्ब नहीं हुए। आपने देखा होगा यूजुअली जो आपकी बॉडी फंक्शनिंग करती है, ठीक है, बॉडी के सारे फंक्शंस वही चल रहे हैं। बॉडी की सारी जो एक्टिविटीज है, आप पानी पीना है या मॉर्निंग में जब भी उठते हो, चाहे 10 बजे उठते हो चाहे 9 बजे उठते हो, तो हमें फ्रेश होने जाना है। ऐसा तो नहीं है कि हम उठ गए, हम उठने के बाद में सीधा काम करने लग गए और हम नाइट में 9 बजे जो है वो वॉशरूम जा रहे हैं। क्या आपकी बॉडी अडॉप्टेड है इस चीज के लिए? बॉडी बिल्कुल भी अडॉप्टेड नहीं है इस चीज के लिए। तो आप प्लीज अपनी बॉडी को हार्म पहुंचा रहे हो। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखो, बॉडी आपका ध्यान जरूर रखेगी। हो सकता है कि कहीं से आपको संक्रमण आने वाला हो और बॉडी वो है अडॉप्ट ही ना करे। अगर बॉडी उस सेल को अडॉप्ट नहीं करेगी तो आप कहीं ना कहीं बच जाओ। तो उसके लिए सिंपल सा ये है कि प्लीज अपनी बॉडी के लिए मील्स टाइमिंग का ध्यान रखो। अगर आप मील्स टाइमिंग का ध्यान रखोगे ना, तो उसके अंदर एक सिंपल सा फूड हैबिट का बहुत बड़ा बेसिक पार्ट है आपकी टाइमिंग से। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। फूड हैबिट्स को भी मैं जरूर इस चीज से कनेक्ट कर दूंगी, न्यूट्रिशन से। पर एक बेसिक न्यूट्रिशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर मैं बताऊं ऑल ओवर न्यूट्रिशन के बारे में, इट डजंट हैव एनी मीन हियर। मैं सिर्फ अभी 3 चीजों को कनेक्ट कर रही हूँ, प्री कोविड, ऑन ड्यूरिंग कोविड, या फिर पोस्ट कोविड। आप जो भी है अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो कि आपको किस चीज को ज्यादा फोकस ऑन लेना है, कि क्या आप गुजर चुके हो उस टाइम से, क्या आप ऑन ड्यूरिंग हो या आपको नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमें अगर बात आती है न्यूट्रिशन की, तो इसमें हमारी बॉडी को हमें हाइड्रेट रखना है। एक चीज और कह देती हूँ, इस चीज में हमें किसी भी एक चीज को नहीं फोकस आउट करना है कि भाई मैम ने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोटीन लेना है। मैं जरूर बताने वाली हूँ आगे, बट एक चीज को लेके नहीं बैठना है। सब कुछ बड़ा बैलेंस मैनर में होना चाहिए। अगर बैलेंस मैनर में होगा तो सबसे फर्स्ट मैंने ये चीज बताई थी कि कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, एट्रीब्यूट्स है, उससे हमें 40 to 50% प्रिकॉशन वैसे भी हो गया है ना। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको हो जाता है या नहीं हो जाता है, तो आपका 20% मैं मानती हूँ प्रिकॉशन वैसे हो गया। अगर आप 30 to 40% अपनी मील का भी ध्यान रखेंगे, तो 100% तो आपने खुद को प्रिकॉशन ले लिया है। तो उसके बाद तो आपकी डिजीज जो है क्योर होनी है या आपको नहीं होनी है। तो जब आप 101% खुद को प्रिकॉशनरी लेके चल रहे हो, तो आप काफी हद तक खुद को बचा रहे हो। अब पहली बात आती है, खुद को प्लीज हाइड्रेट रखो। हाइड्रेट से बात आती है कि हमसे नहीं पिया जाता पानी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास बहुत सुनने में आता है। जहां बात पानी की आती है, प्लीज जो कोविड जिनको हुआ है अभी, वो कहते हैं हमसे नहीं पिया जाता पानी, हमें टेस्ट ही नहीं है, हमारा कुछ आउट ऑफ टेस्ट हो चुके हैं हम। बट प्लीज आपको पीना है, क्योंकि यहाँ पे बाहर टेस्ट भी नहीं है। प्लीज बॉडी को हील करना है। इसके लिए जब हम ऑन कोविड में है या फिर कोविड नहीं हुआ है, आसपास की नेगेटिविटी इतनी, जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ है आसपास की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि हमारी कहीं ना कहीं
अंदर से बॉडी जो है इफेक्ट होती है, हार्मोन्स जो है हमारे स्ट्रेस के हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं। जिनको कोविड नहीं हुआ है, जिनको कोविड हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि हमको किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं है, तो प्लीज बहाने देना बंद करो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो। हाइड्रेट रखना सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि वो आपको बहुत ध्यान रखना है। अब बात आती है हाइड्रेट की। वाटर जो है आपका 2 लीटर्स होना ही होना चाहिए दिन में, उससे ज्यादा होता है बेस्ट है। मिनिमम क्वांटाइज बता रही हूँ कि 2 लीटर्स होना ही होना चाहिए। उसके लिए आप लेमन वाटर भी ले सकते हो दिन में, या फिर ऐसा है कि हमें बिल्कुल भी नहीं पानी पिया जा रहा है, जिन लोगों को कोविड हो रखा है उसके लिए मैसेज दे रही हूँ कि जिन लोगों को पानी नहीं पिया जा रहा है, वो ORS सॉल्यूशन आता है, वो ORS सॉल्यूशन ले सकते हो आप लोग, या फिर कोकोनट वाटर भी ले सकते हो। बेस्ट दिस टाइम बहुत ही अच्छा है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह सबको हेल्प करेगा आपको बॉडी के अंदर, तो आप हाइड्रेट रखिए बॉडी को। वाटर से तो रखिए ही रखिए, बट उसके मैंने कुछ सब्स्टिट्यूट्स भी बताए हैं जो आपकी टेस्ट को बरकरार रखेंगे। लेमन वाटर है, ORS सॉल्यूशन है, कोकोनट वाटर, राइट। सेकेंड थिंग आती है प्रोटीन। यहाँ पे बात मैंने सबसे पहले प्रोटीन की क्यों करी। प्रोटीन वैसे देखा जाए तो थर्ड फोर्थ नंबर पे आता है अगर मैं ऑर्डिनरी न्यूट्रिशन की बात करती हूँ, बट यहाँ पे मैंने प्रोटीन की बात क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बॉडी को हील करना है। यहाँ पे मेरे को बॉडी जो मेरी हार्म हो चुकी है या फिर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो के मेरी बॉडी नहीं सपोर्ट कर रही, एनर्जी नहीं है बॉडी में। आज मैं फन मोड में हूँ, अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, बट मेरे में एनर्जी सी फिनिश हो चुकी है, पता नहीं क्यों। एक्टिवनेस, मील्स के अंदर हाई प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के मेरे को कितने ग्राम लेने इस चीज पे अभी कॉन्शियस नहीं होना। सिंपल सा ये है कि 50 to 60 ग्राम आपको एंटायर डे के अंदर मिल जाए। वेजिटेरियन है तो 50 to 60 ग्राम, आप नॉन वेजिटेरियन है तो हो सकता है आपको हाई भी मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं लेना है किसी चीज को पॉइंट आउट कि हाँ नॉन वेजिटेरियन, मैंने इसलिए बोला क्योंकि नॉन वेज के अंदर हाई प्रोटीन उनकी हर मील में रहता है। तो अगर आपका हाई भी होता है, बहुत जरूरी है वो बॉडी के लिए, बट वेजिटेरियंस को प्रोटीन नहीं मिल पाता है, तो 50 to 60 ग्राम जो है मैं बता रही हूँ एक आइडियल क्वांटाइज, अगर आप इतना भी कवर आउट कर लेते हैं तो दैट्स अ बिग डील। बहुत बड़ी डील है 50 to 60 ग्राम को कवर आउट कर। अब मैं बात करती हूँ कि प्रोटीन हमारी बॉडी में करेगा। एक तो रिकवरी में बहुत जल्दी हेल्प करे। जो लोग भी ऑन ड्यूरिंग है प्लीज खुश हो जाओ, प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दो हर मील के अंदर। प्रोटीन को किसी वर्कआउट से नहीं रिलेट करना, किसी एक्सरसाइज से नहीं रिलेट करना, ये एब्सोल्युटली बहुत जरूरी है बॉडी के लिए कि आप एक तो ये मसल वेस्टेज होने से बचाते हैं। मसल वेस्टेज होने से कैसे बचाता है, यहाँ बात मसल की तो थी नहीं, बट मसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो उसके लिए सिंपल सा ये है कि मसल वेस्टेज नहीं होना चाहिए हमारा बॉडी का। अगर जितना भी 1% भी अगर मसल वेस्टेज हुआ ना, तो वो हमारी रिकवरी में बहुत डिले कर देते हैं। तो एक तो मसल वेस्टेज नहीं होना चाहिए, दूसरी चीज है रिकवरी में बहुत हेल्प करते हैं। अब बात आती है कि प्रोटीन के अंदर क्या क्या है। नॉन वेज वालों के पास मैं एक मैसेज देना चाहूंगी सबसे पहले। आप लोग अगर कोविड हुआ हुआ है, आपको कोई भी नॉन वेजिटेरियन है जिनको कोविड हुआ हुआ है, ठीक है, वो लोग प्लीज अपना बाकी चीजें जैसे चिकन है, मीट है, प्लीज मत लो अभी, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी अंदर से काफी डिस्टर्ब हो चुकी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काफी वीक हो चुका है। तो आप प्लीज एग ले सकते हो, बाकी चीजें नहीं। और जो वेजिटेरियन है उनके पास में बहुत ही रेयरली ऑप्शन है, बट यस आपको मिल सकता है 50 to 60 ग्राम आराम से। उसके अंदर आप क्या क्या ले सकते हैं, उसके अंदर आप रेंटल्स ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं। अगर मूंग की दाल लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और ब्रोकली ले सकते हैं। ब्रोकली इस टाइम पे अवेल नहीं होती क्योंकि दिस इज द समर टाइम, बट जस्ट एक ऑप्शन बता रही हूँ। चिकपीस है कि हम काबुली चने के अंदर बहुत अच्छी क्वांटाइज के अंदर प्रोटीन रहते हैं, जिसको इंग्लिश में चिकपीस बोला जाता है, अगर इंग्लिश से आपको किसी को कनेक्ट करना हो। उसके अंदर भी बहुत अच्छा प्रोटीन रहते हैं। आप लोग ना चिकपीस को या काबुली चने को आप बॉईल करके ले सकते हैं, या फिर पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, या मिलकर छेना बना सकते हैं। ये कुछ प्रोटीन के ऑप्शंस है कि आप सोयाबीन भी है, सोयाबीन भी ले सकते हैं, सोयाबीन का पराठा है, या सोयाबीन को अलग सैलेड फॉर्म में आप लोग ले सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट्स बताए, जो वेजिटेरियंस वालों को बहुत सारी ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बताया जो आप इजीली प्रोटीन ग्रैब कर सकते हो।
और कोशिश करो कि अगर आप 10-10 ग्राम 20-20 ग्राम भी अगर हर मील के अंदर लेना स्टार्ट करोगे, मैं ये मानती हूँ कि दिन के 4 to 5 मील्स लेना चाहिए, वो भी अभी आगे बताऊंगी। अगर आप 10 to 15 ग्राम्स भी अगर हर मील के अंदर लेना स्टार्ट करोगे, तो होपफुली आपका जब तक डे फिनिश होगा तब तक आपको 50 to 70 ग्राम जो है प्रोटीन मिल जाएगा, 50 to 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, राइट। उसके बाद बात आती है विटामिन सी की। आजकल हमें कई लोगों को हम लोग डॉक्टर्स ने काफी रिकमेंड भी किया है, और आप लोग को काफी इस चीज को देख के लगता है कि यार विटामिन सी के बारे में भी बोला जाता है, तो क्या है, मतलब क्या फर्क पड़ने वाला है विटामिन सी से? एब्सोल्युटली फर्क पड़ने वाला है अगर आप इसको मील फॉर्मेट में लेते हैं। मार्केट के अंदर एक लिम्सी करके टैबलेट आती है, आप वो ले सकते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म में। अगर किसी दिन आप नहीं कर पाए या बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है वर्स्ट है कि नहीं मेरे को टैबलेट के थ्रू ही लेना पड़ेगा, वॉमिटिंग हो रखी है, नॉजिया हो रखा है कि मैं नहीं ले सकता इस टाइम पे मील के दौरान, तो आप ले सकते हो लिम्सी टैबलेट। अदरवाइज आप रियल मील से, नेचुरल मील से आप ग्रैब करो। उसके अंदर आप विटामिन सी आपको सारे सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाएगा, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, लेमन बेस्ट, लेमन में मिल ही जाएगा, अगर और कुछ अवेल नहीं है तो कीवी में मिल जाएगा। आप लोग मेंशन भी कर सकते हो या आप लोग अपनी नॉलेज में भी ले सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस है मेरे पास, क्योंकि काफी कंफ्यूजन रहता है इसमें कि अगर हमें ये चीज लेनी है तो क्या हम ले, तो उसमें बहुत ज्यादा वैलिड ऑफ कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। या कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि इंग्रेडिएंट्स के कैलोरीज निकाल के और ये देखा जाता है कि इसके अंदर कितना प्रोटीन है कितना है। प्लीज इस चीज में नहीं फंसना, क्योंकि अगर हम इस चीज में फंसने लगे ना, मतलब खाना भी हमें कैलोरीज देख के कभी भी नहीं है। एक नॉर्मल बता रही हूँ, जब कोविड की बात चल रही है, यहाँ पे कैलोरीज से कोई लेना देना नहीं है, बट बहुत बार देखा है मैंने ये चीज कि कैलोरीज में इतना स्ट्रक हो जाते हैं हम लोग कि हम लोग खाना तो दूर, हम लोग अपनी कैलोरीज से कैलकुलेट करते रहते हैं। प्लीज गाइस, प्लीज एवरीवन, रेस्पेक्टेड एवरीवन, अपनी कैलोरीज को इस तरह से नहीं कैलकुलेट करना कि हम खाना भूल जाए और यहाँ पे हम अपनी अकाउंट्स वाली कैलकुलेशन ही करते रह जाए। हमें खाना है, हमें अंदर ग्रैब करना है कि मेरी बॉडी हील हो। इस टाइम पे नो नीड ऑफ कैलकुलेशंस। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ जो आप सीधा खाएंगे और इफेक्ट होने वाला है बॉडी के अंदर। कोई ऑल्टरनेटिव, कोई सोर्स नहीं है जो आपको प्रिकॉशनरी लेने से हटा पाए पीछे या फिर आपको हील करने से रोक पाए, ठीक है। थर्ड बात आती है इम्यूनिटी की। अब मैं बात लेती हूँ इम्यूनिटी अपनी, जिनको कोविड नहीं हुआ है, जिनको कोविड हो चुका है, या फिर पोस्ट कोविड के बाद भी बहुत सारे सिम्टम्स देखने में आए हैं, इतनी जल्दी हीलिंग नहीं होती है, तो उसके लिए बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपके मतलब अगर मैं बात करूँ किचन के अंदर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। काफी लोग इसको पूछने में भी इंटरेस्टेड होते हैं, समझने में भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो कुछ एंटी बैक्टीरियल्स हमारे पास में है, वो आप आराम से ले सकते हो। गार्लिक है, जिंजर है, टर्मरिक है, बहुत आराम से ले सकते हो, क्योंकि सारी एंटी बैक्टीरियल चीजें हैं। गार्लिक इवन एंटी फंगल भी है, कि हमें कोई भी इंफेक्शियस से बचाती है। और यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी तो इन सबसे स्ट्रांग होगी होगी, चाहे हम इसको सैलेड फॉर्म में ले, चाहे हम इसको टी फॉर्म में ले ले, आप मर्जी चाहे जैसे ले ले, उसके अंदर यहाँ बात इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होगी ही होगी। उसके साथ में हमें ये भी समझना है, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताती हूँ। जैसे बाहर से हमें कोई भी, मतलब हमारी कोरोना पॉजिटिव आ गई रिपोर्ट, अब हमारी एक दो सेल्स जो है वो फैक्ट हुए, उसकी वजह से कोरोना पॉजिटिव आ गई है हमारी रिपोर्ट, अब बाकी सेल्स को वो अटैक ना करें। तो आप अपना मतलब कैसे, अब कोरोना जो है वो सिंपल सा ये है कि बाकी सेल्स को उसको अफेक्ट करना है। अगर आप खुद को फूड जो है नहीं लोगे, नेचुरल मील नहीं लोगे या कॉन्शियस नहीं होगे, तो वो आपके बाकी सेल्स को डे बाय डे अफेक्ट करेगा और आपकी रिकवरी में डिले करेगा। हो सकता है कि हम ये भी सुन रहे हैं कि हमारे लंग्स डिस्टर्ब हो गए, या फिर काफी सारी चीजें सुनने में आ रही है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गए। उसका रीजन यही है। प्लीज जो भी खा रहे हो वो हील करने के हिसाब से खाओ। क्या क्या अवॉइड करना है मैं बताने वाली हूँ अभी, बट उसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, मैं रिवाइज कर दूंगी दोबारा से, आपको प्लीज लेनी है। क्योंकि अगर आप खुद को हील करते रहेंगे तो हो सकता है वो एक दो सेल्स अफेक्ट होके रह जाए, वो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक नहीं कर पाए, बाकी सेल्स को इंक्यूबेशन टाइम के अंदर कहीं भी हार्म डिटरेट नहीं कर पाए।
अगर वो डिटोरिएट नहीं करेगा तो हमारी बॉडी की रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इम्यूनिटी के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई। अब बात आती है विटामिन डी की। विटामिन डी हम आराम से ले सकते हैं, यहाँ रह भी एक्चुअली और इंडिया में रहे तो विटामिन डी की कोई कमी नहीं है अगर हम उसको प्रॉपर वे में ले सुबह 8 से 10 के टाइम में। बट हो सकता है जिनको कोविड हुआ हुआ है, अब वो अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकल सकते हैं, अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्वारंटीन हुए हुए हैं, या हमें एक फोबिया बैठ चुका है कि नहीं यार हमें बाहर नहीं जाना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मशरूम ले सकते हैं। मशरूम के अंदर विटामिन डी, उसको बोला भी सनशाइन विटामिन जाता है, तो आप मशरूम बहुत ही इजीली ले सकते हैं। जिनको कोविड हुआ हुआ है वो डेली रूटीन में मशरूम ना लो, कोई भी ऐसी चीज मत लो जिसको डाइजेस्टिव करने में प्रॉब्लम, ठीक है। और एक छोटी छोटी सी चीजें, अब हमें क्या नहीं लेना है, अवॉइड है, क्या अवॉइड करना है हमें, फ्राइड बिल्कुल अवॉइड करना है, बेकरी आइटम्स है, जंक फूड है। जिनको कोविड हो चुका है, अब जैसे कई बार ये भी सुनने में आती है मैम हम तो रसगुल्ले खाते हैं। रसगुल्ले प्लीज मत खाओ, क्योंकि आप मीठा खा रहे हो, आप ठीक है उसको आप प्रोटीन दे रहे हो बट एक मीठे के फॉर्म में दे रहे हो, आप कोविड को एक्टिव कर रहे हो इंस्टीड ऑफ दैट कि खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो कि मैं उससे फाइट कर पाऊं। तो आपको कोरोना से फाइट करनी है, ना कि कोरोना को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो आपसे फाइट कर पाए। तो ऐसा प्लीज नहीं करना है, आपको मीठा नहीं खाना है। और इस चीज के लिए भी नहीं स्ट्रेस लेना है कि मेरे को बहुत ही लंबे टाइम तक मीठा नहीं खाना। लंबे टाइम तक क्यों, आप थोड़ा सा क्वारंटीन टाइम के अंदर अच्छे से डिसिप्लिन रख लो, सिंसियर रख लो। अगर आपने उस टाइम पे बॉडी को एक्टिव रख लिया, बॉडी को हेल्दी कर लिया, या फिर खुद को इस बीमारी से बचा लिया, दिस इज बेस्ट रिवॉर्ड दिस टाइम। इस टाइम पे सबसे अच्छा रिवॉर्ड है ये कि आप अलाइव होके बाहर निकलो, मतलब अपने आप में रिवॉर्ड है ये। आपको कोई देने वाला नहीं है, आप किसी से लेने वाले नहीं हो, ये अपने आप में रिवॉर्ड है। इस टाइम पे आप इस बीमारी से निकल के भी खुद को बिल्कुल अलाइव कर लिया आपने, या जिनको नहीं हुआ है वो भी डे बाय डे खुद को अलाइव रखे हुए हैं, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए। बेकरी आइटम्स है, जंक फूड है, नहीं खाना है बिल्कुल भी। और फ्राइड है, जो भी डाइजेस्टिव में दिक्कत होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने एक चीज और है, जिन लोगों को भी कोविड होता है उन लोग को रहता है कि हाँ जो आपको सर्वे हार्ड चीजें नहीं खानी, ज्यादातर कोशिश करनी है कि लिक्विड हो। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले सकते हो, इस टाइम पे आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे भी बड़ा ध्यान देना है। आराम से पपाया ले सकते हो, वाटरमेलन ले सकते हो। उसके बाद बात आती है, आप आराम से बटर नहीं लेना है, जो सॉल्टेड बटर होता है वो प्लीज यूज नहीं करना है। जिन लोगों को कोविड हुआ हुआ है, जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ हुआ है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बट कोशिश करो कि दिन के आप 1 से 2 स्पून तक घी लो, वो भी बड़ा वाला स्पून नहीं, प्लीज नॉर्मल स्पून जिससे आप खाना खाते हैं, ठीक है, वो आप आराम से ले सकते हो। वो आपके गट को हील करेगा, आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा, क्योंकि बॉडी अंदर से नरिश रहेगी तो वो कहीं भी स्टक नहीं हो पाएगी, तो वो आपकी रिकवरी पे अंदर काफी हेल्प करेगा। कोकोनट वाटर आप ले सकते हो, क्योंकि जितना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के अंदर बनाएगा उतनी अच्छी रिकवरी फास्ट होगी। आप एक ले लो, दो ले लो, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म्स में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो भी सुन रहे हैं उनका इम्पैक्ट मीनिंग ये है कि आप प्लीज या तो रिकवर हो जाए, या इस चीज को लेके प्रैक्टिकली हो जाए कि नहीं मुझे मेरा खुद को हील करना है, खुद का ध्यान। अब इस चीज में और है, एनी इश्यूज विद फूड हैबिट्स एंड न्यूट्रिशन? No, ma'am. या नाउ क्लियर? Yeah. या अब इस चीज के अंदर मैं एक चीज और बताऊंगी लंग्स को लेके। जो लंग्स हैं वो हमारे काफी, हमें लगता भी है और ये चीज हो भी रही है कि जैसे जैसे इंक्यूबेशन टाइम के अंदर बाकी सेल्स को अफेक्ट करता है, 1 सेल 2 सेल, तो उस टाइम पे लंग्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फिब्रोसिस वाली कंडीशन में चले जाते हैं। तो वो नहीं जाने देना है, उसके अंदर अपना डे 1 to डे 5 सबको क्लियर हो चुका है कि जिस दिन हमारी रिपोर्ट आती है दैट टर्म्स टू बी द डे 0। डे 1 to डे 5 हमें इस चीज का लेके ध्यान रखना है, और मॉनिटरिंग के साथ में हमारे लंग्स को भी थोड़ा सा मॉनिटर करना है कि क्या हमारे लंग्स ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी होगी। प्लीज जिन जिनको भी कोविड हो रखा है या जो प्री कोविड है, पोस्ट कोविड है,
कोविड भी हो रखा है तो अपने बेड के आसपास घूमिए, या फिर अपने वॉशरूम तक अपनी डेली एक्टिविटीज जो है, नेसेसरी जो एक्टिविटीज है वो खुद करिए, ठीक है, उसके लिए किसी को भी हैम्पर ना करिए। दूसरी चीज ये है कि कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस से आप डे 1 to डे 5 या रेगुलेट में भी सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ मॉनिटर अच्छा आ रहा है, तो आप प्लीज करिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस का मतलब ये है कि अगर नाक से उस टाइम पे सांस नहीं ली जाती है तो आप मुंह से सांस लो, कुछ सेकंड्स रोकिए, डे टू डे अपने सेकंड्स जो है वो बढ़ाइए, और अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है, अपनी चेस्ट को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, चेस्ट नहीं झुक पाए। कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है जो आप प्रॉपरली डे टू डे में करो। जिनको नहीं हुआ है या जिनको हो रखा है वो भी इस चीज को रेगुलेट हो, ताकि हम इस भ्रम से बच पाए क्या हमारे लंग्स इफेक्ट हो रहे। आज मेरी में एनर्जी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे लंग्स शायद इफेक्ट तो नहीं हो गए, तो मैं कुछ भी किसी को कहने से पहले एक बार खुद को ही जज क्यों ना कर लूं, खुद को ही टेस्ट क्यों ना कर लूं। तो आप कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करिए। बाकी अगर जिन लोगों को भी लंग्स आपको लगता है या फिर रिपोर्ट के अंदर ये चीज आ चुकी है या ऑलरेडी प्रिस्क्राइब हो चुकी है, वो प्लीज कोविड टाइम के अंदर जो है या फिर जिन लोगों को ये इशू हुआ है वो टोमेटो सूप डेली लेना शुरू कर दो। और जो टोमेटो इस नॉर्मल भी खा सकते हैं वो प्लीज आप खाइए, क्योंकि उसके अंदर लाइकोपीन रहता है, वो लंग्स को हील करने में काफी हेल्प करते हैं। तो आप लंग्स वाली चीज को लेके इस टाइम के अंदर जो बहुत नेसेसरी है लोगों की, वो आप लाइकोपीन टोमेटो ले सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल का बड़ा ध्यान रखना है। अब ऑक्सीजन को लेके भी हम बड़ा पैनिक हो जाते हैं। मान लो पल्स ऑक्सीमीटर जो है काफी बारी इधर उधर बता देता है रेट्स को, तो प्लीज पैनिक नहीं होना, एक बार ले लो, उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस ले लो। अगर 94 बिलो आती है तो 93 आती है तो भी पैनिक नहीं होना। उसके लिए आप सिंपल सा ये कि उल्टे लेट जाओ। आप उल्टे लेट के क्या होगा, आपका जो स्टोमक है वो बहुत ज्यादा दबना नहीं चाहिए। आप नीचे प्लीज लेग्स पे 2 पिलो लगा लीजिए, अपनी चेस्ट पे पिलो लगा लो, जिससे आपका जो स्टोमक वाला पार्ट है वो बिल्कुल फ्लैट रहे, वो दबे ना नीचे। और इस तरह से हमें 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बिल्कुल इसी पोजीशन के अंदर सोते रहना और बड़ा रिलैक्स होके सोना है। उसके बाद आप दोबारा से लो। होपफुली आपका 94 आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो भी पैनिक नहीं होना, दोबारा वो एक्टिविटी करो, फिर ले, फिर भी नहीं आता है तो प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर दो या एक बार हॉस्पिटल में अपना प्रिस्क्राइब लो, बहुत ज्यादा बेटर है। बट पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार मैंने ये भी देखा है इन बिटवीन ऑफ दैट कि जैसे 93 आ जाता है या 92 आ जाता है, उसमें हम इतना पैनिक हो जाते हैं कि एकदम से जैसे सब कुछ गिरने वाला है। तो इसमें पैनिक होने वाली सिचुएशन नहीं है, ये बहुत ही नियरेस्ट पॉइंट है जो अप एंड डाउन चलता रहता है। ये कई बारी मीटर्स है, कई बारी वो भी रॉन्ग बता देते हैं, है ना। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। साथ में एक्सरसाइजेस भी थोड़ी थोड़ी करते रहना है। अब एक पॉइंट और मैं लूँ कि स्लीप। हमारा टॉपिक तो फूड हैबिट्स एंड न्यूट्रिशन था, बट छोटी छोटी सी चीजें मैंने इसलिए बताई कि शायद हम अवेयर हो जाएं, शायद हम इन चीजों का ध्यान रखें। स्लीप का बहुत बड़ा रोल है। आज हम इस टाइम के अंदर है बहुत ज्यादा फ्री मोड में है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना स्लीपिंग टाइम भी बिगाड़। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रात में ही सोए या जो भी सोए या फिर कुछ भी कर रहे हैं आप, पर एक अपना स्लीपिंग पैटर्न होना चाहिए कि मुझे एक साथ सोना है 4-5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे। ऐसा नहीं है 2 घंटे सुबह सो लिए 2 घंटे शाम को सो लिए, या फिर एक प्रॉपर टाइम के हिसाब से नींद भी नहीं पूरी हो रही है, बॉडी को एक प्रॉपर स्लीपिंग नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से भी काफी एबनॉर्मल इफेक्ट बॉडी शो करती है, क्योंकि फ्री आप हो गए हो या फिर वेकेशन टाइम जो है वो आपका है, लॉकडाउन पीरियड आपका है, पर प्लीज बॉडी नहीं अडॉप्ट कर पाई। तो आप बॉडी जो है अपने अकॉर्डिंग फंक्शनिंग करती है, पर बॉडी एक बार डिस्टर्ब हो गई तो आपको हील करने में बहुत डिस्टर्ब कर देगी। तो प्लीज इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान। या एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, एनी क्वेश्चन? नो मैम, अभी तक तो कोई क्वेश्चन एज सच नहीं है। या हाउ यू फील इट? It was good. It was a nice session, ma'am, so far. Just if you permit me, just one question. Yeah. Dr. Saab, you just mentioned about the loss of muscle. What exactly you mean by that, and how is it caused? And secondly, for a non-vegetarian, you had mentioned that chicken and red meat is not advisable. Till what period? Till what period of post-COVID time? या इसका सिंपल सा ये है कि पोस्ट कोविड में आप स्टार्ट कर सकते हो इसको 1 वीक। अगर आपकी रिपोर्ट एक बार नेगेटिव आ जाती है तो आप इसको 2 हफ्ते बाद आप स्टार्ट कर, या 1 हफ्ते बाद भी स्टार्ट करते हो। जब आपको ऐसा लगता है
कि आप आराम से खा पी पा रहे हैं, आपको कोई इशू नहीं आ रहा, किसी तरह की कोई वॉमिटिंग वाला सीन नहीं हो रहा, या हम जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी दोबारा से बाहर पुश नहीं कर रही है, तो आप एक वीक बाद आराम से ले सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे खाने पीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है या मेरा इंटेस्ट नहीं अलाउ कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं, बट मुझे ऐसा पता है कि अगर मैं खाऊंगा तो मेरी बॉडी हील होगी, तो आप 2 हफ्ते बाद स्टार्ट करिए। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि इस टाइम पे हमारा नॉन वेजिटेरियन ये जो चीजें होती है, इनको डाइजेस्ट करने के अंदर बॉडी को बहुत ही प्रोसेस लगाना पड़ता है। तो इस टाइम पे हम नहीं खाएंगे, हम एग जरूर ले सकते हैं, एग वाइट आप आराम से, व्हाइट एग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एग व्हाइट वाला पार्ट होता है वो आप बहुत आराम से लो, क्योंकि आपको एक एग के अंदर 3 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। होपफुली जो लोग एग ले सकते हैं वो हो सकता है अपने प्रोटीन के ग्राम्स क्लियर कर। मैम एक या नाउ क्लियर? एक मेंबर को क्वेश्चन था अबाउट पोस्ट कोविड वीकनेस। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग कि कोविड के बाद वीकनेस बहुत लंबे समय तक हो रही है, तो वो कैसे रिकवर करने के लिए एनी स्पेशल थिंग कि कोई स्पेशली कोई फूड ऐसा लें कि जिससे वो जल्दी रिकवर हो सके इस वीकनेस से? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैंने अभी पहले भी बताया, मैं दोबारा बता रही हूँ, कोई स्पेसिफिक फूड नहीं होता। देखो, हमें बैलेंस ही काम करना होता है। हो सकता है आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन का क्वांटाइज वैसे भी वेजिटेरियन डाइट में बहुत कम रहता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे, जो जिनको भी इशू है ये आप प्लीज नोट कर लो। अगर नॉन वेजिटेरियन है आप व्हाइट एग ले सकते हो, पोस्ट कोविड टाइम के अंदर है, सिर्फ वीकनेस है, आराम से खा पी रहे हैं, तो आप चिकन से भी कंप्लीट अप कर सकते हैं। बॉइल्ड चिकन से अगर कंप्लीट अप करेंगे तो हो सकता है बहुत जल्दी रिकवर हो जाए। सेकेंड थिंग, जो वेजिटेरियंस है, अगर वेजिटेरियन की बात में कहूँ तो आप प्लीज नोट कर लीजिए, जैसे दाल है, मूंग की दाल आप डेली लो उस टाइम, और खिचड़ी, खिचड़ी एक बहुत अच्छा अमीनो एसिड बनाती है और बहुत अच्छा सुपर फूड है इस टाइम पे। जो आप खुद को कह रहे हैं ना कि मुझे वीकनेस है, हो सकता है कि आप 5 to 6 डेज अगर रेगुलर मैनर में शाम के टाइम पे मूंग दाल वाली खिचड़ी लेंगे, तो आपकी रिकवरी, आप में जो वीकनेस आ रही है वो हो सकता है बहुत ज्यादा जल्दी से डिमिनिश हो जाए, और आप एक एनर्जी आ जाए आपकी बॉडी के अंदर, एक एक्टिवेट फॉर्म आ जाए। भी आप नोट कर सकते हैं, सोयाबीन है, फूड नहीं है, समर में बिल्कुल भी अडेप्टेबल नहीं है लेना, क्योंकि ये विंटर्स के टाइम पे भी बहुत मुश्किल से मिल पाती है। इसीलिए मैं सारी चीजें बता रही हूँ। पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, मिल्क का छेना बना सकते हैं। अगर आप ये लेंगे, प्रोटीन डाइट अपना अच्छा रखो, हाइड्रेट रखो खुद को। मैं सिर्फ वही चीजें बता रही हूँ जो आप कह रहे हैं कि वीकनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छे से एनर्जी दिला दे, मुझे अच्छे से एक्टिवेट कर दे। अपना पानी का लेवल बढ़ा दीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, लेमन वाटर लीजिए। लेमन वाटर में आप शुगर कंज्यूम करके ले सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज है वो एक एक्स्ट्रा पोजीशन है, अदरवाइज आप आराम से ले सकते हो, शिकंजी बना के लो आप, ठीक है, काफी हद तक एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड चीज ये है सिट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी लियो लो। विटामिन सी में कुछ फ्रूट्स है जैसे लेमन है, ऑरेंज है, कीवी है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इन चीजों से आप बहुत जल्दी वीकनेस से ऊपर उठ जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। Ma'am, one more question. Ma'am, what about milk? क्या milk we can take milk at night or we should drink it in morning only? अभी ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप किस टाइम पे लो, नाइट में लो बेस्ट है। आप मॉर्निंग में भी अगर आपके डेली रूटीन के अंदर है, और डिपेंड करता है आप कौन सा मिल्क लेते हो, ठीक है। इस टाइम पे बहुत ही हाई फैट मिल्क नहीं लेना, लो फैट मिल्क लेना है। अगर बात करूं मैं कि लो फैट मिल्क हमें कौन सा लेना चाहिए, जो पैकेट्स के आते हैं उसमें भी लो फैट मिल्क आते हैं। पैकेट आइटम अभी कम यूज करना है, आप काउ मिल्क यूज कर सकते हैं, उसको मॉर्निंग में भी ले लो, नाइट में भी ले लो। और एक चीज और, अगर यहाँ पे किसी का कोई फैट का इशू है या ऐसा कुछ है, तो आप प्लीज नाइट के टाइम पे ले सकते हो, और उसमें भी थोड़ा सा वाटर ऐड करके लेना है। अगर फैट का इशू है, मैं नहीं मानती इस टाइम पे हमको हेल्दी रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को कोरोना नहीं हुआ है या पोस्ट कोविड रिकवरी भी अच्छे से हो चुकी है, तो प्लीज आप नाइट में ले लो। और कोशिश करो इस चीज के अंदर, एक बेस्ट ऑप्शन होंगे आपको, प्रोबायोटिक में कर्ड होता है, आप कर्ड लो। बटर मिल्क भी नहीं लेना है, आप कर्ड लो। कर्ड इज अ बेस्ट ऑप्शन दिस टाइम। उस टाइम पे जिन लोगों को कोविड हुआ है वो लोग भी आराम से कर्ड ले सकते हैं। और मिल्क की बजाय इस टाइम पे ज्यादा सुटेबिलिटी एक्चुअली कर्ड की है, क्योंकि बहुत जल्दी हील करता है, बहुत जल्दी हमारी बॉडी के अंदर अडेप्टेबल हो जाता Ma'am, one more question from a member. है। There's a common problem of mucus during this COVID period.
Can we take some natural diet or something else to cure the same? Yeah, please आप नेचुरल मील के अंदर ज्यादा फोकस आउट करो। कुछ चीजें हैं उसके अंदर आप बाकी चीजों के अंदर भी ध्यान दे सकते हैं, बट अगर आप नेचुरल मील लेंगे और जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से लेंगे, चीजों को लेने का, मील को लेने का अगर राइट तरीके से आप लोगे, कोई भी चीज करो आप, अगर उसको राइट तरीके से प्रॉपरली करते हो ना, डेफिनेटली क्योर। Yeah, anything else? No, ma'am. I don't think there are any other. हेलो। Yeah. Yes, sir. पहले मुझे एक ये चीज पूछनी थी कि जो हमारे ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था मुझे आपसे। हाँ, यस। ये जो कोविड से रिकवर होने के बाद में कितने दिन के बाद में हम ये वैक्सीनेशन अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्ट है, वैसे क्वेश्चन मेरा ये आपका, लेकिन फिर भी मैंने कहा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज ठीक है? हेलो। Yes, हाँ, sir. रिपीट करो एक बार। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई कोविड से रिकवर्ड कोई पेशेंट है तो वो कितने टाइम के बाद वैक्सीनेशन करवा सकता है फर्स्ट डोज के लिए अपनी? उसके लिए आप सिंपल सा ये है कि जब आपको कोविड एक्चुअली, मतलब आपने फर्स्ट डोज लगवा ली है क्या? हाँ, मैंने लगवा ली है फर्स्ट डोज। मैम, उसके बाद आपको कोविड हुआ है? He want to ask नहीं, अगर कितने दिन के बाद आफ्टर रिकवरी कितने दिन के बाद वैक्सीनेशन कराया जा सकता है फॉर फर्स्ट डोज? मैं इन बिटवीन नहीं, मैं बिल्कुल इन बिटवीन अभी पूछ रही हूँ, फर्स्ट डोज या सेकंड डोज? फर्स्ट डोज। हाँ, तो उसके लिए आप सिंपल सा ये है कि 2 वीक रुक जाइए, 2 वीक के बाद और 3 महीने के बीच में आप कभी भी करा सकते हो, बट एकदम से नहीं करानी है। जैसे आप अगर आपका कोरोना नेगेटिव आ जाए तो उसके लिए आपको 2 हफ्ते तक आप रुक जाइए, उसके बाद आप आराम से करवा सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी बॉडी में बनी हुई है, ठीक है? तो आप आराम से 2 हफ्ते बाद में करवाओ, 2 हफ्ते पहले नहीं करवा। और 2 हफ्ते बाद भी आपको ऐसा लगे कि कोई ना कोई सिम्टम मेरी बॉडी में बचा हुआ है, तो आप प्लीज 1 वीक का और होल्ड ले लीजिए। बट उसके बाद में जब सिम्टम वाली चीज खत्म हो जाए, वीकनेस वाली चीज खत्म हो जाए बॉडी के अंदर, वो खत्म हो जाती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, उसके बाद आप आराम से लगवा लो, पर मिनिमम टाइम 2 हफ्ते पहले नहीं लगवा। ओके, थैंक यू। Excuse me, ma'am. One question. Yeah, मैम, हल्दी वाले दूध का काफी लोग कह रहे हैं लाइक टर्मरिक मिल्क रात को पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इज इट अ ट्रू फैक्ट और ऐसा नहीं है, इसके अंदर सिंपल सा ये है कि आप जो हल्दी वाला दूध है वो रात को पीने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। आप उसको मॉर्निंग में भी पी सकते हो, दिन में भी पी सकते हो, रात में भी पी सकते हो, बस शर्त ये है कि उसके 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना, उसके 1 घंटे बाद कुछ नहीं खाना है, और उसको इंडिपेंडेंटली पीना है। इंडिपेंडेंटली का मतलब ये है कि उसको पीने के बाद भी 1-1 घंटे का होल्ड रखना है आगे पीछे, और उसको ऐसे टाइम पे पीना है जहां आप फुल ना हो, थोड़ा सा एम्प्टी स्टोमक होना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्लॉटेड नहीं होना चाहिए स्टोमक। ओके, गर्मियों में लाइक अब जैसे समर है तो वो हल्दी इज लाइक वेरी गर्म होती है वो, आई थिंक, तो वो नेगेटिव वो तो नहीं देगी बॉडी पर? बिल्कुल नहीं देगी, डिपेंड करता है क्वांटाइज के अकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा क्वांटाइज नहीं लेनी है, 1 टीस्पून लेना है। टीस्पून का मतलब क्या हुआ, जिस नॉर्मल स्पून से हम खाते हैं उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, और टीस्पून का मतलब बहुत ही छोटा होता है। आपको मार्केट में भी टीस्पून मिल जाएगी, या फिर मैं एक एग्जांपल दूं, जिससे हम घर में मसाले डालते हैं, राइट, बहुत ही छोटी स्पून से डालते हैं, वो हमें टीस्पून यूज करनी है। आप टीस्पून कर सकते हो, और आपको सूट कर गई है 1 स्पून, ऑल दैट ओके। नहीं सूट करिए तो आप ½ टीस्पून भी लोगे ना, तो इट्स मोर मच देन फाइन। इसकी क्वांटाइज मैटर नहीं करती है, लेना मैटर करता है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। I think there are no more questions. So Yes, thank you. Thanks a lot, Dr. Payal, for such a wonderful session. Oh, thank you so much. And आपने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें बता दी, and members को बहुत ज्यादा, I think, इससे फायदा होने वाला है आगे चल के. Yeah, absolutely. I hope so. Thank you, ma'am. Thank you very much. Okay, thank you. We now proceed further, and I know we are eagerly waiting to hear C. Anand Mathur ji for our next session. But before that, I would just like to take 2 minutes, as in our earlier meetings also, we have been doing this. We are felicitating, honoring our past chairman of our branch.
And in this context, this time we have the privilege to honor a very dynamic and energetic past chairman of Moradabad branch, CA Pradeep Bishnoi ji. I request Sharad ji to kindly play the video where Vijay Bansal ji and Amit Agarwal ji went to the office of CA Pradeep Bishnoi ji and felicitate him with on this thing. Sharad ji? Sharad ji? Madam ma'am, Sharad ji is not audible, I think. Hello, am I audible? Yeah. Sharad ji, are you there? Okay, I think there is some problem. मैं बाद में ले लेते हैं हमसे फिर. Okay, he is doing. Yes. So this is the thing. There are some photographs. हमने प्रदीप बिश्नोई जी को felicitate करा branch की तरफ से, and our secretary and vice chairman CA Vijay Bansal ji and Amit Agarwal ji are there. शॉल उड़ा के और माला पहनाकर इनका स्वागत किया गया. प्रदीप बिश्नोई जी आज शायद हमारे साथ नहीं जुड़ पाए फॉर सम रीजन, तो हमें उनकी कुछ वर्ड्स सुनने चाहिए थे लेकिन अब नहीं मिल पा रहे हैं. So we will now move on further, and I will just give a okay. This paying. The small video. ये तो मैंने कहा देखिए एनर्जेटिक और कितने यंग लग रहे हैं प्रदीप जी हमारे. बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी और विजय जी. आपको बहुत बहुत बधाई सर. Okay. Thank you Sharad ji. Thank you. Okay sir, so we now proceed further, and I will just give a quick intro of our learned speaker before I hand over to him. CA Anil Mathur ji is practicing as senior partner of Messrs. Mathur and Company Chartered Accountants with its head office at Jaipur and branches at Mumbai and New Delhi. He had an excellent academic record, and after completing his graduation in science biology, he joined Chartered Accountancy course. He scored 13th rank in intermediate examination of ICAI and completed his CA in 1978. Thereafter, he did his certificate course in FA FD from ICAI. He has worked as co-opted member of Fiscal Law Committee, Committee of Insurance, Expert Advisory Committee, and Audit and Assurance Services Board of ICAI. He has also worked as member of Tax Audit Quality Review Board of ICAI in 2019 and 2020, and has also drafted background material on SA 500, 501, 530, 540, and 570. He is a member of International Fiscal Association and International Association of Professionals and Senior Government Officials, having its office at Netherlands. He is also working as an advisor and consultant for various overseas projects and pharma research at Sri Lanka, Dubai, Georgia, and Singapore. He is Vice Chairman of Central Zone of All India Federation of Tax Practitioners and has also served at various posts in Jaipur branch of ICAI, Tax Consultant Association Jaipur, and Federation of Rajasthan Trade and Industry. He is a regular faculty and speaker in seminars of CIRC of ICAI, All India Federation of Tax Practitioners, Jaipur branch of ICAI, Rajasthan Tax Consultant Association, and various other forums. So with this, I welcome you. I welcome you once again to this meeting. And now over to you, sir. Over to you. Thank you very much, Ankit ji. Thank you, sir. Thank you. Chairperson of the branch, Mani ma'am, Vice Chairman Mr. Bansal, Secretary Amit ji, and guests of honor Pradeep Bishnoi Saab, and my co-speaker Dr. Payal Agarwal. In fact, she has just delivered a very good talk about it. और उसके सुनने के बाद हमें at least peace of mind जरूर मिल गया होगा. तो मुझे एक playing field मिल गया है कि मैं अब उस mind को शायद थोड़ा बहुत tinker कर सकता हूँ. So thanks to the branch in providing me this opportunity for this subject. It's a very small subject, but
डे टू डे पीरियड के अंदर ये बहुत ज्यादा काम में आता है. एंड बिलीव मी, most of us, I won't say make a mistake, but we don't comply what we are expected to do about it. On this thing, what is today's subject is issues and certification of provisional and projection financial statements. I will try, and if I can do the screen share. Yeah, host is disabled screen sharing. Sharat ji, you have to enable the screen sharing for Anil sir. शरद जी इनेबल करिए स्क्रीन. He is doing. Yeah. It's visible, sir. Thank you. So our today's subject is issues and certification of provisional and financial projected financial statements. और जो ये दो छोटी सी बुक्स दिखाई हुई हैं, सीए रेगुलेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब्जेक्ट नॉर्मली रिवॉल्व्स अराउंड these two things only. One regulations, one of these books would say no, yeah, we are prima facie not allowed to do it. One would say no, you can somehow or other do it. So these two books would probably indicate to us the I think I'm audible now. Yes, sir, you are audible. So what we think is basically there are three types of financial statement which are normally used in a day-to-day basis. One is annual statements, one is the provisional statements, and one is a projected financial statement. These are three types of statements which we cover it. So what are, and I mean, just to take a brief of it, what are the types of financial statements? The annual financial statements would be like our normal financial statements, prepared on the historical cost basis, complying with accounting standards, usually required for audit purposes, and they are certified by a chartered accountant since it is an assurance agreement. So now in a normal annual financial statements, we are able to express an opinion on them. And you can opine on a certificate on a particular financial statements only and only if you are able to audit them. So report on an opinion is either it is a true and fair, and then report would be based on our standard of auditing SA 700, 705, 705 revised. Means if you have a qualified opinion, then you have to follow 705. If you clean reports, SA 700. Or if you have to go for these things, emphasis of matter, then you have to follow SA 706 for that. So these are the normal things that we do it. If we go for these financial statements which are provisional in nature, so for this provisional financial statements are those financial statements which we do follow as on a historic cost basis. They are based on a data which has just completed its annual year. Means these are prepared on the basis of past available financial data. Whenever there is an accounting period which is over, so we prepare provisional statements only on the basis of available financial data. They are of course temporary,
So because they have not attended the finality, and the only thing of caution about them is that we should normally look for the provisional financial statements only up to the period till time limit for audit is not over. I mean, if you are preparing a financial statement ending for March 2021 till April till May, you are, if you are doing relying upon these financial statements, they are fine. Okay. And since the figures are there, but we cannot do any opinion on them. We can compile them, but we cannot do any opinion on these financial statements. That is the thing. If you go for this, the third stage is the projections. Because out of these two subjects, and projection financial statement, we all know is they are based on historic data, prepared as per the past available financial data and period which is not covered. This was for the sorry, some issues. Now for these projected financial statements means these are prepared for the future dates on the basis of projections and prepared on the assumption of events that may occur in future. Means projections, of course, the period which has not yet started. These are the projections we all know about it, not much to it. And since these are the assumptions, they are futuristics, and assumptions can never be certified. This is a fundamental accounting principle. We know about it. We know as a standard of accounting, also prudential accounting, that we should never account for a prospective income unless it is certainly to arise it. So our basic, the question, the subject that was given to me by Abhishek was, can a practicing chartered accountant certify a provisional or projected financial statements? That was the basic thing. Who uses these provisional or financial statements? Let's ask about ourselves. An entity itself can use them, maybe for the self-generation point of view. If it has got an MIS system is there, so they may be needed for making projections, that would be there. And the third entity that we normally know is the financial institutions or the lending institutions, the banks and others. These are the financial institutions who normally ask us chartered accountants, a practicing chartered accountant, whenever there is a credit limit, that you have to give a provisional financial statements duly signed by a chartered accountant. क्लाइंट्स को हमेशा बैंक वाले कहेंगे कि साहब आप जाइए और इस हमारे सीए से आप सर्टिफाई करके जाइए. क्लाइंट आपकी नहीं सुनेगा, बिकॉज क्लाइंट का खुद का काम है, उसको क्रेडिट लिमिट्स लेनी है. वो ये कहेगा कि साहब आप प्लीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रोविजनल आपने बनाए हैं उनको आप साइन करके दे दीजिए. प्रोजेक्शंस के ऊपर फिर भी बैंक इतना नहीं कहता, बट प्रोविजनल बैलेंस शीट को वो जरूर कहेगा कि साहब आप साइन करा के ला दिए. बाकी कुछ बैंक्स तो ये भी कहेंगे कि साहब प्रोजेक्शंस को भी साइन करके दे दीजिए, क्योंकि बैंक मैनेजर खुद अपने ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता. अगर आप बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इट इज एन ऑफिशियल अबाउट 2 months बैक इन एन RTI, Reserve Bank has clarified that we have not issued any instruction to the banks to take a duly certified provisional financial statements from a client. लेकिन चूंकि बैंक मैनेजर खुद ये कहेगा, तो हर क्लाइंट आपका ये आके कहेगा, आपके ऊपर सबसे पहले सवाल करेगा कि अंकित जी, मैडम जरा प्लीज आपको क्या दिक्कत है, मेरी ट्रायल बैलेंस है, मैं आपको ट्रायल बैलेंस दे रहा हूँ, आप ही तो ऑडिट करने वाले हो, आप ही तो बनाने वाले हो, आप तो इसके ऊपर सील लगाइए, साइन करिए और मुझे दे दीजिए. ये काम अपन नॉर्मली नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं तो देयर इज अ वे टू इट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने अपनी 40-43 साल की प्रैक्टिस में देखा है, हम 80% लोग उसको कर देते हैं. कुछ लोग जो बहुत थोड़े से हैं वो ये कह देते हैं कि नहीं साहब, drafted from trial balance as produced before us and figures verified from books of accounts.
लेकिन आप जब ये कहते हैं तो आप इसके ऊपर एक कोई ना कोई सर्टेनिटी दे रहे हैं जो एडवाइजेबल नहीं है, और ये आप, क्योंकि आपका नाम उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक हो रहा है। सो अगर किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का इन प्रैक्टिस वो नेम लिंक होता है तो जो यूजर है वो ये मान के चलता है कि दीज आर सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स और इनके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ। वेयरएज आपने इनके ऊपर ऐसा कोई काम नहीं किया, आपने कोई ओपिनियन दी है, एंड अनलेस यू हैव गिवन एन अश्योरेंस और ए रिव्यू, यू हैव कैरिड आउट एन अश्योरेंस या रिव्यू, तब तक अपने को इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं करना चाहिए। तो हमारी लिमिटेशंस यहाँ तक की है। तो अगर अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रेगुलेशन एक्ट को अगर देखें और जो भी नया कोड ऑफ एथिक्स है, वो ये कहता है कि a CN practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he permits his or name of his firm to be used in connection with an estimate of earning contingent upon future transactions in a manner which may lead to the belief that he vouches for the accuracy of the forecast. मतलब any practicing chartered account will be deemed to be guilty of professional misconduct if he allows his name to be used in connection with an estimate or an earning which is contingent upon future transactions. Clearly ये कहते हैं कि साहब हम futuristic transactions को हम नहीं कर सकते सर्टिफाई, अगर हमने करते हैं तो प्रोफेशनल गिल्टी होंगे, क्योंकि अगर हमने इसको ये बिलीफ नहीं लीड होना चाहिए कि हम इसकी एक्यूरेसी को सर्टिफाई करते हैं. So this is what our Chartered Accountants Regulation Clause 3 Part 1 says about it. तो लेकिन अगर हमको ये करना है तो किस प्रकार से किया जा सकता है? तो देयर आर ways to verify, and to some extent I can use the word authenticate these provisional financial statements in a manner which I will try to explain it to you, or which has been prescribed by our standards there. So provisional financial statement, as we know, they are unaudited. तो हम कोई ओपिनियन उनके ऊपर एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी ऑडिट रिपोर्ट के अगर अपन करते हैं तो वी स्टार्ट विद वी हैव ऑडिटेड द अटैच्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजिंग ऑफ सच एंड, और हम नीचे लिखते हैं कि वी सर्टिफाई दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर रिव्यू in relation to the balance sheet of the state of affairs as on such and such date and the accompanying statement of profit and loss thereat. तो हम अपनी उसके ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन हम किसी भी फाइनेंशियल प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन नहीं नॉर्मली दे सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर फॉल कर जाते हैं. लेकिन इसके लिए इंस्टीट्यूट ने, एक काउंसिल ने एक स्टैंडर्ड बनाया है जिसको हम स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज कहते हैं, SRS. ये स्टैंडर्ड्स पे हम बाद में जाएंगे कि किस तरीके से स्टैंडर्ड्स बने हैं, ये जो आजकल प्रेजेंटली स्टैंडर्ड्स हैं. तो ये इसमें इस SRS 4410 में ये कहा गया है कि a practicing chartered accountant on the basis of facts produced before him may sign the unaudited provisional financial statements. लेकिन इसके करने के लिए कुछ हमें इस SRS 4410 ने गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रखी है. अगर आप SRS 4410 को देखें, जो कि अभी इफेक्टिव हुआ है मार्च 2016 से, एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन और आफ्टर 1st of April 2016, तो वो ये कहता है कि यू कैन वेरीफाई, you can sign on an unaudited provisional financial statement, लेकिन उसके लिए सबसे पहले a request shall come from client in this regard. हमें पहले क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि सब हमको इस पर्पस के लिए एक फाइनेंशियल प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमें सर्टिफाई कराने की आपसे जरूरत है. That may be for its personal use, it can be for the purpose of giving it to the credit institutions, or it may be for the purpose of making futuristic projections. So a request has to come from the client in this regard. And once a request comes from the client in this regard, then a practicing chartered accountant has to issue an engagement letter to the management regarding this.
अब वो एंगेजमेंट लेटर है, उसके कंटेंट इस SRS 4410 के अंदर दिए गए हैं कि आपको किस तरीके से करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम स्यू मोटो अपनी तरफ से नहीं करेंगे किसी भी प्रोविजनल फाइनेंशियल को वेरीफाई, बिकॉज वी हैव टू फॉलो SRS स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, क्योंकि स्टैंडर्ड्स कई प्रकार के होते हैं। ऐसे जिनको अपन नॉर्मली वाकिफ हैं, दे आर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। SAEs जो हैं, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। देयर आर SQCs, जिसको हम स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स कहते हैं। एंड देयर आर SREs, जो हम स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट कहते हैं। ये इंस्टीट्यूट ने इस वक्त, जो पहले अपन 85 और उसमें जाएं, तो पुराने टाइम के अंदर प्रीएम्बल आता था ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, तो हम ये मान के चलते थे। अब वो अलग हो गया। अब अपना ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड जब से बना है, उसमें 2008 के बाद से इस डिफरेंट तरीके से ये हमारे स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर दिया। एवरी स्टैंडर्ड हैज गॉट इट्स हैज टू बी फॉलोड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। तो SRS जो हम कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जो क्योंकि रिलेटेड सर्विसेज इज नॉट एन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विसेज, तो इसको हमको SRS 4410 को फॉलो करना है। अब इसमें फर्स्ट थिंग, एज आई सेड, कि रिक्वेस्ट मींस आपको ये डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा दैट द रिक्वेस्ट हैज टू कम फ्रॉम द क्लाइंट साइड, एंड वंस अ रिक्वेस्ट इज देयर, देन you have to issue a management letter to that. अब एंगेजमेंट लेटर नॉर्मली क्या कंटेन करेगा, वो SRS 4410 प्रेस्क्राइब करता है। SR 4410 is about standard is around 45 pages, something like that. So is engagement letter shall contain, means engagement letter which is issued by a practicing chartered accountant to the client. वो ये क्या चाहता है कि कवरेज हो, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, उसमें क्लियरली प्रिस्क्राइब करना होता है कि हम क्लाइंट को एड्रेस करते हैं ये, और हम उसको लिखते हैं कि साहब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट। क्योंकि ये जो प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दिस इज अ वर्क ऑफ कंपाइलेशन, तो इसको SRS 4410 को हम कंपाइलेशन स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट हम उसके अंदर डालेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके खुद के लिए, और इट इज अ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या आप इसको किसी क्रेडिट एजेंसीज को दे रहे हैं, वो उसका इंटेंडेड यूज भी हम उसके अंदर मेंशन करेंगे। लाइक अवर नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट्स, द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट इन रिलेशन टू द एंगेजमेंट, और प्रैक्टिशनर्स रिस्पांसिबिलिटी इंक्लूडिंग दैट, वो हम अपन इसमें से वी हैव टू क्लियरली स्पेसिफाइड दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन और रिव्यू कंक्लूजन ऑन दिस कंपाइलेशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चीजें जब हमको एंगेजमेंट लेटर के अंदर लिख के देनी पड़ेगी। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। कंपाइलेशन इज योर रेस्पॉन्स, मतलब स्टेटमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडिंग आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर दिया, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंपाइल करके देना है, एंड वी विल नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन और रिव्यू कंक्लूजन ऑन दैट। तो इसमें तीन चीजें होंगी। वन, दैट यू हैव टू रिसीव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, ऑन द रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट यू हैव टू इश्यू एन एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर को आपको क्लाइंट से एक्सेप्ट करा के वापस मंगाना है। क्लाइंट को आप एड्रेस करके दीजिए, एंड वन कॉपी यू हैव टू गेट इट बैक फ्रॉम द क्लाइंट ड्यूली एक्सेप्टेड दैट। वंस दैट इज देयर, देन यू कैन स्टार्ट योर असाइनमेंट। मींस हमको अब क्या बना के देना है, हमें इसको प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देने। नाउ यू कैन डू योर कंपाइलेशन, बिकॉज दिस इज बेसिकली अ वर्क ऑफ कंपाइलेशन। और इसके साथ साथ आपको एंगेजमेंट लेटर के साथ साथ आप इसके अंदर एक अपनी रिपोर्ट भी इशू करेंगे। दिस रिपोर्ट इज नॉट एन ऑडिट रिपोर्ट, बट इस रिपोर्ट का भी इसमें प्रिस्क्राइब करी गई है कि SRS 4410 रिवाइज जो है वो एक रिपोर्ट के फॉर्म में भी अपन इसमें इशू करते हैं। अपने जो भी अपन प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करके देंगे, उसके साथ साथ ये रिपोर्ट लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज अपनों ने नहीं करी तो यूजर ये मान के चलेगा कि आप इसके कंटेंट को वाउच करते हैं और आप उसकी एक्यूरेसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो फॉर एनी प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इफ यू हैव टू फॉलो SRS 4410, फॉलो SRS 4410, और उसमें हमको एक मैनेजमेंट को एंगेजमेंट लेटर लिख के देना है, एंड दैट एंगेजमेंट लेटर के साथ साथ हमको एक रिपोर्ट इशू करनी है।
अपार्ट फ्रॉम दिस SRS 4410 हमको इसको बनाने के लिए SQC1 को भी फॉलो करना है। SQC1 इज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। वो जो हमारे जो सबसे मतलब जो अपना AAS भी है, वो 2 तरीके के स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब करता है। वन इज स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल के एंड वन इज आवर अश्योरेंस स्टैंडर्ड। तो दोनों स्टैंडर्ड्स को एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स अपने एसएस जितने हैं वो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, और एसक्यूसीज हैं वो क्वालिटी कंट्रोल है। अभी तक एक ही एसक्यूसी निकला है, SQC1, that we have to follow the SQC1. So this was regarding engagement letter and thing like that. A little bit about what is this SRS 4410. So SRS 4410 is normally followed. This is called standard on related services. अभी तक हमने इंस्टीट्यूट ने 2 SRS दिए हैं। अभी तक जो इश्यूज हुए हैं, तो SRS 4410 is related to our signing of provisional financial statements, और वो जिसको कहा जाता है कि दिस इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन एग्रीमेंट। तो पहले हम इसको कहते थे, इनफैक्ट इट इज एन ओल्ड स्टैंडर्ड, पहले बेसिकली 2007 में भी आ गया था ये, 2004 आई थिंक रादर। तो अभी 2016 में जब रिवाइज होकर आया है, तो उसके बाद में इसका नाम चेंज हो गया, बिकॉज इट्स नॉट कंपाइलेशन एग्रीमेंट। पहले ये था एंगेजमेंट टू कंपाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अब इसको कहते हैं अपन SRS 4410 इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। और ये उनके लिए 31 ऑन और आफ्टर 31 ऑफ मार्च जो भी इफेक्टिव डेट है उसके ऊपर ये है। इसको अगर अपन SRS 4410 को देखेंगे तो इसका मेन एम है कि प्रैक्टिशनर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अगर हमको एंगेज किया है किसी भी मैनेजमेंट ने, कि हम प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ SRS 4410 विदाउट गिविंग यू एनी एश्योरेंस ऑन दैट इंफॉर्मेशन, और उसके हम एंगेजमेंट को हमको रिपोर्ट करना है उसी के फॉर्म में। तो हम बिना आपको एश्योरेंस दिए हुए कि हमने इसको ऑडिट किया गया है, तो और वो क्यों ही कहा गया है, क्योंकि हमें, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि हमको प्रैक्टिशनर्स का नाम द मोमेंट यू साइन ऑन ए प्रोविजनल या किसी के ऊपर करते हैं, तो हमारा नाम उससे अटैच हो जाता है। तो वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए यूजर को कि दीज स्टेटमेंट्स हैव बीन ड्यूली ऑडिटेड, सो वी are certifying the accuracy and correctness of those financial statements. तो इसके लिए हमको SRS 4410 फॉर प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉलो करता है। अपन इसकी अगर SRS की अगर अपन इस रिटेल सर्विसेज स्टैंडर्ड में अपन देखें, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट जो इस स्टैंडर्ड के अंदर दिए हैं, आई एम नॉट डीलिंग विद स्टैंडर्ड पर से, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा। तो वहां पे जो शुरू में जो वर्ड आता है, वो वर्ड आता है वी हैव कंपाइल्ड। वो वी हैव एग्जामिन नहीं आता, वी हैव ऑडिटेड नहीं आता, वहां पे वर्ड आता है वी हैव कंपाइल्ड, क्योंकि आप जो इसके अंदर कर रहे हैं, what is basically you are doing is you are doing a compilation engagement. आप इसके अलावा आप ऑडिट वर्क नहीं कर रहे हैं, एश्योरेंस वर्क नहीं कर रहे हैं, इट इज ए कंपाइलेशन वर्क। तो प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप जब भी करें तो यू हैव टू फॉलो SRS 4410 एंड नॉट एनीथिंग एल्स। प्लीज माइंड करें, कभी भी SRS को फॉलो, प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को विदाउट SRS 4410 नहीं करें, otherwise we would be held to be guilty of professional misconduct. So this is all about a little bit of background of provisional financial statements. The second limb of our today's subject is can we sign a projected financial statements also? अगर अपन वापस उसको देखें, अपना जो इंस्टीट्यूट का हमारा ये कहा गया है बैकग्राउंड के अंदर, कि अगर हम गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होंगे, कि अगर हम ऐसी चीज को सर्टिफाई कर देते हैं कि जो कॉन्टेंजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और उसमें किसी को बिलीव होगा वी आर वाचिंग फॉर द एक्यूरेसी, तो दिस 100% ये उसके ऊपर प्रोजेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बनता है। लेकिन अगर अपन किसी क्लाइंट के लिए कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, तो कई इंस्टीट्यूशंस ये कहते हैं नहीं साहब, प्लीज गेट दिस प्रोजेक्ट प्रोजेक्शंस आल्सो वेरीफाइड एंड साइंड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हम
मतलब अपनी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं उसके ऊपर अपनी राउंड सील लगा के साइन करके मत दीजिएगा। अगर देना है तो आपको एक इसके लिए एक दूसरा स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा कि जिसको हम स्टैंडर्ड ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि अपने को पता है कि these are prepared on the assumptions of future that events which will occur in futures. So assumptions are accordingly never certified and no opinion is issued on them. हम कभी भी किसी भी प्रोजेक्शन के ऊपर हमको अपनी ओपिनियन देनी थी, और अगर हमने we will be deemed to be professional guilty of professional misconduct अगर हमने प्रोफेशन इस प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के विदाउट फॉलोइंग SAE 3400 को अगर हमने फॉलो करने के बगैर अगर हमने कर दिया है तो हम ये इस चीज को नहीं करना चाहिए। सिमिलरली हमारे इसमें जो SAE 3400 है ये बेसिकली काफी पुराना स्टैंडर्ड्स हैं, 2007 से ही है आने को तो, लेकिन अभी तक जो इंस्टीट्यूट ने है यहाँ पे अपने SRS जो स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज हैं वो 2 इशू करे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ जो अपने जो ये एश्योरेंस एंगेजमेंट है जिनको हम SAEs कहते हैं, SAEs अभी तक 3 इशू हो गए हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो अपने को जो प्रोजेक्शंस के लिए अगर अपन को फॉलो करना है तो वी हैव टू फॉलो SAE 3400। बिना उसको फॉलो किए हमको कोई भी प्रोजेक्शंस को हमें साइन नहीं करना है। अब अगर अपन इस SAE 3400 को देखें तो SAE 3400 ये कहता है कि a member is allowed to participate in preparation of a financial forecast। वो हमको अलाउ करता है कि हम किसी की भी फाइनेंशियल फोरकास्ट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रेजेंट कर दें, और वी आर ऑल्सो अलाउड टू रिव्यू इट, बट देयर आर सर्टेन conditions which we have to follow as per SAE 3400। हमें उसके अंदर ये लिखना है कि a practicing CA has to clearly indicate in his report the source of information। Means हमने जो projections अगर हम बना रहे हैं, if those sources have been borrowed from somewhere else या हमने किसी की सेल्स के फिगर्स को किसी दूसरे से लिया है या किसी बुक से लिया है या थिंग्स लिया है, तो we have to indicate the source of the information। What is our basis of forecast? Because these are part of report of to be issued in case of assigning in projected financials। Assumptions made in arriving the forecast, मतलब हमने सिंगल शिफ्ट के ऊपर यूनिट काम कर रही है कि जो हमने असेसमेंट्स कराया डबल शिफ्ट कर रही है, इसमें कितना परसेंटाइल ऑफ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशंस क्या हैं, मेजर assumptions क्या हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी डू नॉट वॉच द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। Accuracy of forecast can never be do it। अगर अपन इसकी रिपोर्ट को देखेंगे, अगर जब हम इसकी रिपोर्ट बनाते हैं तो हम इसकी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर अपन रिपोर्ट को देखें तो उसके अंदर ये है वर्ड्स जो स्टार्ट होता है कि वी हैव एग्जामिन्ड, हमने वी हैव नॉट ऑडिटेड, कंपाइलेशन के अंदर था वी हैव कंपाइल्ड। यहाँ है क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रिपेयर करने के बाद हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं, तो वी हैव एग्जामिन्ड द प्रोजेक्शंस, और दैट वे दिस रिपोर्ट इज नॉर्मली स्टार्टेड। As I said, we are supposed to comply with SAE 3400 while drafting our रिपोर्ट ऑन सच एंगेजमेंट्स। प्रोजेक्शन फाइनेंशियल में है तो इसमें भी एक रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया गया है, वी हैव टू फॉलो दैट, एंड दैट रिपोर्ट हैज टू कंटेन दोस 4 थिंग्स कि आप इसको किस किस तरीके से कर सकते हो। यू हैव टू गिव द बेसिस ऑफ द फ्यूचरिस्टिक्स, यू हैव टू गिव असम्पशंस को आपको बताना है, इन सारी चीजों को बताना है, एंड यू हैव टू इशू अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन SAE 3400। अपार्ट फ्रॉम this 3400, a practicing member has to also take a note of guidance note issued by our institute in January 2019. This guidance note is not directly related to projections, but it is related basically to the company which issues prospectus for public offerings।
सो गाइडेंस नोट ऑन रिपोर्ट्स इन कंपनीज प्रोस्पेक्टस, वो इसलिए इसको लिंक करा गया है क्योंकि बिकॉज हम जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी कभी अगर कोई भी हम लोग प्रोस्पेक्टस को भी सर्टिफाई करते हैं ना, जब भी पब्लिक इश्यूज के लिए जाता है, तो दैट प्रोस्पेक्टस इज नॉर्मली वेटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। उस प्रोस्पेक्टस के लिए हम ये गाइडेंस नोट बनाया है, और इस गाइडेंस नोट के लिए बेसिकली जो कवर करता है नॉट ओनली द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, बट इट आल्सो कवर्स द प्रोविजन ऑफ द सेबी इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 जो अभी रिवाइज होकर नहीं आई है, relating to the reports required to be issued by chartered accountants in prospectus issued by company for public offering. So we have to comply with not only SAE 3400, but we have to also take a note of guidance note issued by Institute in 2019 relating to SEBI issue of capital disclosure for prospectus for future offering. तो इन दोनों चीजों को देखेंगे तभी जाके हम इनको वेरीफाई कर पाते हैं। और जब तक अपन इन दोनों चीजों को नहीं देखा 3400 पे, तो एंड दिस गाइडेंस नोट, तो वी शुड नॉट अंडरटेक एनी सिग्नेचर ऑन प्रोजेक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स परमिट अस टू साइन ऑन प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स as well as on projected financial statements. Our regulation act say prima facie no, subject to these things, otherwise we will be held to be guilty of professional misconduct. So if the report is there, it is not an audit report, it is not a certificate, but a report based on SRS 4410 revised in case of a provisional financial statements and SAE 3400 in case of a projected financial statement. A report which has been prescribed by these standards. So once a report is issued, then does UDIN is required? Because certificates and audit reports में UDIN is necessary. Without UDIN, we know 2019 के बाद अपने को UDIN जनरेट की रिक्वायरमेंट आ गई, तो क्या इन दोनों चीजों के ऊपर भी हमको UDIN की रिक्वायरमेंट है? इसका आंसर अगर अपन जाएं, इंस्टीट्यूट ने FAQs निकाले हैं ऑन UDIN, तो it says कि member has to comply with SRS 4410 while preparing compilation of information or provisional financial statements and has to obtain UDIN for that. And similarly, the member has to comply with SAE 3400 while drafting the report for such engagement and has to obtain a UDIN. अगर हम UDIN के FAQs में जाएं, FAQ का पार्ट H में जाएं, जहाँ पे other audit and assurance functions mentioned हैं, तो पैरा 26 एंड 25 के अंदर एक मेंशन किया हुआ है कि इन चीजों के ऊपर हमको यूडिन लेना पड़ेगा। अब यूडिन भी आपने लिया, आपने SRS भी दिया, तो एक क्वेश्चन और आता है, मैं आपके ऊपर ही डाल रहा हूँ उस क्वेश्चन को। वुड peer review apply to it? इन SRS 4410 की रिपोर्ट और SAE 3400 की रिपोर्ट पे क्या पीयर रिव्यू की रिक्वायरमेंट आएगी? आर दी सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू? क्योंकि अगर अपन पीयर रिव्यू को अगर आप प्रीएम्बल पढ़ें तो पीयर रिव्यू कहता है कि जो भी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन एंगेजमेंट्स हैं, these are subject to peer reviews. Can these engagement statement, compilation of information and SAE 3400 be considered for NEFRA as well as for peer review? I would say yes, for a simple reason that these have been issued, these standard on related services and standard on assurance engagements have been issued by AASB. AASB को council ने specifically authorized किया गया है to issue your various auditing standards. So AASB issues
SQCs, क्योंकि AASB का काम है बेसिकली दो प्रकार का करना, one engagement standards and one quality control standards. So quality control standards SQCs हैं, engagement standards हैं अपने अभी तक जो निकले हैं वो 4 प्रकार के निकले हैं, जैसे one is standard on auditing, जिनको अपन SAS सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, और आपको पता ही कि SAS का आजकल नंबरिंग जो 2009 से वो अलग अलग प्रकार से हो गया, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और अब तो 800 की सीरीज भी आ गई है। तो 700 तक तो अपन यूज में करना ही पड़ता है, बिकॉज ऐसे 700, 705 एंड 706 तो हमारे लिए फॉर एनी बिग कंपनीज ऑडिट और फॉर गवर्नमेंट कंपनीज ऑडिट ये हमारे लिए बाइबल है, गीता है हमारे लिए, क्योंकि हमको ऐसे 700, 756 तो हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा। SREs भी स्टैंडर्ड हैं रिव्यू एंगेजमेंट्स के लिए, जो अभी तक इनको जो सीरीज है 2000 दी गई है, SAE की सीरीज जो 3400 दी गई है, और SRE की सीरीज है जो 4400 से शुरू हुई है, 4410 जो अपन इसमें काम कर रहे हैं। तो अब अगर आप ये कहते हो कि जिनके ऊपर एसेज लग रहा है वो सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू है, तो ये भी उसी के से निकले हुए हैं, तो ये भी इनफैक्ट आई हैड अ बिग डिस्कशन विद पीयर रिव्यू बोर्ड चेयरमैन अभी कुछ दिन पहले। मैंने कहा भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि साहब इसके ऊपर, क्योंकि आई हैड केम अक्रॉस अ कपल ऑफ आर्टिकल्स ऑन दिस कि पीयर रिव्यू, दीज आर नॉट सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू। SRE 4410 एंड SE 3410 एक मेंबर ने ओपिन किया था कि दीज आर नॉट सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू बिकॉज दीज आर नॉट audit stand. Basically, you are not giving an opinion, but you are giving, you are verifying it, you are issuing a report, and since UDIN is there, so UDIN links to your identity, and once UDIN is required, then peer review should be there. So on my off the record talks, they said yes, peer review should be rather applicable on these compilation engagements and SE engagements. So this was in brief the coverage on the topic, whether we can sign these provisional balance sheets or provisional financial statements. Any questions on that? Yes, sir, there is a question from a CA. Can a statutory auditor of a company accept the compilation engagement assignment? No, statutory auditor should normally is not allowed to, but where would you go to? If you go to companies 144 section, it says, it specifies certain particular things which normally you are not allowed to do it. What you are doing is a certification of a provisional financial statement of an entity. I don't think there is any bar on that, because we cannot take any other work, but this is a certification work, and certification work can normally be taken up by statutory auditor also. Sir, one more question. Under which category UDIN will generated for provisional and projected statements? I said it is, if you go to the FAQs issued by the institute, there are parts. The part H is there, and in part H there is para number 25 and 26, which specifies that UDIN is required for these things. One more question, sir, is it compulsory to follow this procedure, or can we sign the provisional or projected statement by simply writing prepared as per explanations given to us and not an assurance of any kind? No, what one should do is, and you should mention on this financial statements which you are signing
like what I normally do is I just mentioned compiled by us on the basis of information provided to us, not being audited or reviewed as per SARS 4410. But SRS 4410 also specifies that you have to issue a report on that. And so that report has to accompany your signed financial projection, provisional financial statements. And before taking up an assignment, before issuing a report, you should issue that management letter also. Unless that letter, the request has to come, and because in that management representative letter, it is said we have been requested to issue a compilation, we have requested to carry out a compilation work, and accordingly, these are the engagements, and these things have to be carried out by the management. The management representation has to be there, and it has to be accompanied by a report as per SRS 4410. The formats are there in the standards. One can go through it. There are 3-4 illustrations are there. So the same CA is saying who has asked for UDIN. As per UDIN portal, there is no specific category for UDIN for provisional statements. Go through clause H. It is there. It is there. So someone is saying, one CA is saying, so you can share RBI guidelines. I will send you. I will send you. But that is an RTA information for certain things. There are RTA information. Somebody asked for so many things, and one of them was also that have you instructed the banks to take something like that? That was in reply. But the thing is, banks, RBI or banks would say we have to work according to the act, according to our safety, so they will go for it. And since SRS is there, so you have to go comply with that now. Okay, sir. No more queries. Any member has any queries, so he can raise hand and ask. We have time also. Yes, it's an open session. Anyone can raise hand and ask. I think it's all clear. Yeah, there is one. Okay. Ankit ji? I think someone has raised a hand. Aman, please unmute yourself and ask the question. Hello, now it is audible. Yeah. अनिल सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि बेसिकली अगर हम ऑडिट 4410 वाला कोई एंगेजमेंट करते हैं, ठीक है, रिपोर्ट तो हम इशू कर देते हैं, बट जो एंगेजमेंट लेटर वाला पार्ट है और जो दूसरा पार्ट है कम्युनिकेशन फ्रॉम दी क्लाइंट्स, अगर वो हम कंप्लाई नहीं करते हैं बट हम रिपोर्ट इशू कर रहे हैं, तो उसमें भी कुछ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट रहेगा? क्योंकि सब अगर SRS 4410 clearly says that first request has to come from the client, because what you are doing is a compilation engagement, and on receipt of the we have to issue a management this engagement letter also. So these are our in-house documents only. They are not to be attached with our report, but you should obtain it. Okay, basically because the standard specifies, and the standard has also said that these are the points to be covered in your engagement letter also. Okay. Thank you, sir. I mean, if you want, I can share the engagement letter also. I will send it. The one that we normally use it now. Since last 5-6 years, we have been using it. Since the engagement letter and the report, I will just mail it to you. Yeah. It will be of great help for us. Okay. Any other question from any member? क्या कि होता है, देखिए क्लाइंट के ऊपर, आई मीन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि क्लाइंट के ऊपर हम जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं. हमको अपनी स्किन सेव करनी है, क्लाइंट की स्किन सेव नहीं करनी है. राइट सर. किसी भी क्लाइंट ने अगर किसी इसको कंप्लायंस निकल को आपने तो रिपोर्ट इशू कर दी 4410 के हिसाब से, और एंगेजमेंट लेटर नहीं हुआ, और अनफॉर्चुनेटली कई मैटर चला गया आगे, तो सबसे क्लाइंट तो चला जाएगा,
सबसे बड़ी तकलीफ अपने पर आएगी। अब इस कोविड पीरियड की बात कर लें, अगर अपनों ने किसी को बना के दे दिया होगा, कोई भी ऑडिट भी दे दी होगी, क्लाइंट आपको फीस मांगोगे तो ये नहीं कहने वाला है कि सब अरे सब तकलीफ हो रही होगी, आप जरा पैसे ले लीजिएगा। वो अपना 4410 को लेके चला जाएगा, अरे सर अभी तो मेरा सैंक्शन नहीं हुआ, अभी तो मेरा डिसबर्समेंट में नहीं हुआ। लेकिन हमको क्लाइंट की तरफ कम ध्यान देना चाहिए, हमको अपनी खुद की सेल्फ एश्योरेंस भी जरूरी है। Yes, Priyanka, you want to ask the question? Yeah, actually, sir, I would just want to ask, like, I have a login to the UDIN portal. In that, there is 3 type of documents: certificate, GST audit, and audit and insurance function. So, under which document type we have to, generate a UDIN for this provisional balance sheet? आप जरा गूगल करिए FAQs on UDIN by ICI, उसमें फिर ये सारे के सारे आएंगे, उसमें जाएंगे आप। मैं आपको वो भी भेज दूंगा, वो स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। दैट आई विल सेंड इट। क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी सर। सर से एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमने SR 1140 के हम प्रोविजनल बैलेंस शीट दे देंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हाँ मतलब प्रोविजनल बैलेंस शीट में और फाइनल बैलेंस शीट हम ही करेंगे, दोनों हम ही साइन करेंगे। तो हम दोनों में कई बार क्या होता है कि जब प्रोविजनल बैलेंस शीट क्लाइंट की आती है तो बहुत सारे कई बार ऐसा भी होता है कि जिस समय कई सारे खर्चे नहीं डाले होते हैं उसके, मतलब कहने को वैसे तो कैश फ्लो वगैरह मेंटेन होती है, लेकिन कई बार मतलब वो खर्चे डालने से रह जाते हैं उसके। तो क्या कैश में खर्चे पड़ सकते हैं बाद में प्रोविजनल के बाद, और मेन बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे उसमें? देखिए आप कैश के खर्चे तो इसलिए ही नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपकी उस पर्टिकुलर डे के ऊपर आपकी कैश बुक क्लोज हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है। आप मई के अंदर अगर ये कर रहे हैं, मान लीजिए अगर अपन प्रोविजन बना के दे रहे हैं, तो कैश में तो नहीं हो सकते। वो तो सिर्फ ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर जाएगा कि आपके प्रोप्राइटर पार्टनर ने अपने पास से कर दिए थे एक्सपेंडिचर्स और उसको अकाउंटिंग नहीं हुई थी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन हम ये कहें कि साहब कि हमारा कैश बैलेंस में हमारे पास इतना ज्यादा था और वो हम कर रहे हैं, वो ठीक है, वो लेकिन अब पॉइंट ये है कि आपने उस वक्त कंपाइलेशन अरेंजमेंट किया, उस वक्त ये था। तो अगर अपन 4410 को फॉलो कर लेते हैं, पूरा ले लेते हैं, अपन कुछ सेव तो जाएंगे, लेकिन कैश के एडजस्टमेंट्स जरूर से ज्यादा अगर होंगे इसलिए हम लोग तो प्रोविजनल बैलेंस शीट को इसलिए साइन करने से अवॉइड करते हैं क्योंकि सर कई जगह देखते हैं जब क्लाइंट को बैलेंस शीट चाहिए होती है, मई में आता है तो उसके अकाउंट्स पूरे ही नहीं होते, और वो तो चाहता है बस कर दो मेरे आप, और ये इसलिए हम सोचते हैं कि कई बार लगता है SR 1140 के बाद भी हम सेफ नहीं होते सर। कोशिश तो हमेशा यही करनी चाहिए कि अपने को नहीं करें, और अगर करें तो फिर अपने को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके करें। वही बात तो सर सही है बिल्कुल सर। और सर प्रोविजन में सर जो भी प्रोविजनल में भी एक लिमिट है ना भाई, आपके डेप्रिसिएशन में फर्क हो सकता है कि भाई उसमें भी कैलकुलेशन में हो सकता है, डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड किया गया वो भी हो सकता है, आपके जनरल के एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज क्रिएट हो सकती है, वहां तक तो सब कुछ ठीक है, थिंग्स विच आर एक्सप्लेनेबल है। लेकिन अगर अपन देखें कि सब 10 लाख से कैश के एक्सपेंडिचर बढ़ गए थे, तो इसका मतलब वो बाद में हुआ है। मतलब होता क्या है कि मई में जब बैलेंस शीट जब प्रोविजनल बैलेंस शीट तो कहता है कि मेरी 5 अप्रैल को साइन कर दो, और 5 अप्रैल को तो उसकी बैलेंस शीट तो बनी भी नहीं होती सर, और पता लगा और कैश पता लगता है, और प्रोविजनल बैलेंस शीट कर भी नहीं मान लो, पता लगा उसमें कैश मिल जाएगा। इसीलिए तो तकलीफ बहुत आने लग गई है, और इसीलिए तो 2016 में इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस इसीलिए दिया जा रहा है कि आप एंगेजमेंट लेटर भी उसको इशू करिए और अपना बिल्कुल हमें करके क्लियर करके दें कि हमने इसके ऊपर कोई भी एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, कोई भी हम सर्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, हमने तो बेस्ड ऑन एज पर इंफॉर्मेशन हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस था, हमने इसको कंपाइलेशन वर्क किया, नथिंग बियॉन्ड दैट। सर हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। जैसे सर अभी आपने बोला कि हम प्रोविजनल बैलेंस शीट्स में कई बार ऐसे रिपोर्ट देते हैं दैट वी हैव कंपाइल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट गिविंग द रिपोर्ट अंडर SRS 4410, तो क्या ऐसी रिपोर्ट ठीक है सर, दे सकते हैं? नहीं, विदाउट नहीं, SRS 4410 अगर अपने को देखिए, किसी भी प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर अपन साइन कर रहे हैं तो हमको SRS 4410 फॉलो करना ही करना है। करेक्ट। वो ये कहता है कि सर फर्स्ट द रिक्वेस्ट शुड कम फ्रॉम द क्लाइंट, देन यू हैव टू इशू एन एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर में पूरा का पूरा पर्पस और सब कुछ लिखा जाएगा। उस एंगेजमेंट लेटर मतलब अगर आप, ये भी हो सकता है कि खाली बैलेंस शीट और P&L ही अपन दे रहे हैं,
नोट्स नहीं बना के दे रहे हैं। अगर हम सारा कुछ कर रहे हैं तो हम पूरा का पूरा हम उसमें मेंशन करेंगे। फिर हमको ये भी लिखना पड़ेगा कि अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे कोई एस फॉलो नहीं हो रहे हैं तो भी हमको करना पड़ा, और उसके बाद में फिर हम उसके बेसिस के ऊपर रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट इज अ वेरी स्मॉल बट रिपोर्ट कैटेगोरिकली सेज कि सब वी हैव नॉट डन एनी वेरिफिकेशन और ऑडिट ऑफ दिस। तो हम अपनी तरफ से ओपिनियन इशू नहीं कर रहे, वो रिपोर्ट में लिखा हुआ है, रिपोर्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। नहीं, अभी आपने जैसे आप रिपोर्ट देते हैं आपने पढ़ के बताया था विदाउट रिव्यूइंग अंडर SRS, वो आपने जो बताया नहीं, था। हम क्या कर रहे हैं, हम जो आप साइन करते हैं ना सब बैलेंस शीट के ऊपर, जो प्रोविजनल बैलेंस शीट अपने ऊपर वर्ड यूज कर लिया प्रोविजनल बैलेंस शीट, हम उसमें लिख रहे हैं। अपन नॉर्मली लिखते हैं कि सब इन टर्म्स ऑफ सेपरेट रिपोर्ट ऑफ इवन डेट अटैच्ड, ये अपन जब अपन ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, व्हाट इन प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कर रहे हैं कि कंपाइल्ड बाय us on the basis of information provided to us, not being audited or reviewed as per SRS 4410. So you are linking with SRS 4410. Yes, we are linking with SRS 44. We are not certifying. Otherwise, वही वाली बात है, लिंक अपनी सील और साइन होकर मान के जाएगा, लिंक हो गया। तो being issued in terms of SRS 4410, वो रिपोर्ट उसमें अटैच होगी। क्योंकि बैंक्स में अगर कहीं भी जरा से भी प्रॉब्लम हो गई और या डिसिप्लिनरी कमेटी के अगर आप केसेस देखें तो उसमें ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन सर छोटी जगह में क्लाइंट्स की प्रॉब्लम भी है सर। नहीं तो सर इसीलिए आप अगर आप SRS को करके देंगे, बैंक वाला भी कहेगा कि साहब कृष्ण मोहन जी ने बहुत बढ़िया काम किया, इनको फीस भी अच्छी मिलनी चाहिए, आप क्लाइंट के पैसे भी ले पाओगे। जब तक उसको रिपोर्ट वो करके नहीं दोगे ना मैनेजमेंट लेटर, तब तक नॉर्मल के तो आपको नहीं देने वाला कुछ भी वो। Rightly said. Right. Any other question from any member? So sir, please share the letter of engagement. I will do it on Monday. I will definitely send it. थोड़ी सी पर्सनल प्रॉब्लम थी, I will do it on Monday. मैं दोनों के ब्रांच के मेल पे भेज दूंगा। So I think sir और कोई questions तो अभी नहीं आ रहे हैं। So thanks a lot sir for such a wonderful deliberation. It was quite thought provoking and it will be a lot of help for the members. Request CA Mohammad Ammar to please propose a vote of thanks to our learned speaker. Ammar. Yes. Sir, hello. Is Yeah, it audible? Yes. Yeah, Anil sir, the topic which was chosen by branch, which is issues in certificate of provisional projected financial statement. Anil sir, जो आपने जो भी यहाँ discussion हमें guide किया है 4410 3400 के हिसाब से हमें financial statement जो issue करने हैं, जो हमें जो भी projected financial statement, वो हमारे लिए बहुत helpful है, क्योंकि डे टू डे टाइम के लिए हमारे स्पेशली हमें काफी टाइम अपने क्लाइंट्स के लिए ये डॉक्यूमेंट्स इशू करने होते हैं। तो जो भी आपने बातें बताई हैं वो होपफुली सभी मेंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ दी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो हर एक क्लाइंट्स को ये साल में काफी टाइम ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें इशू करके देने होते हैं। तो आगे से मुझे लगता है कि जो भी मेंबर्स हम इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है वो डेफिनेटली बेनिफिटेड होंगे। जो भी सर ने गाइडेंस बताई हैं, जो भी इंस्टीट्यूट ने जो गाइडेंस नोट इशू किए हैं, जो एसेस जो इशू किए हुए हैं, उसको लेकर हम काफी ज्यादा अवेयर हुए हैं, काफी ज्यादा अब आगे हम इस चीज को फॉलो करते हुए ये प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलो करेंगे। सो सर की एक पर्सनल इश्यूज के होते हुए भी सर ने आज बहुत अच्छा डेलिब्रेशन दिया है। ये एक हमारे लिए काफी सोच की बात है कि सर ने इतना मुश्किल टाइम में हमें बहुत अच्छा डेलिब्रेशन दिया। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो भी आपने हमें बताया है काफी आगे के लिए हम सभी के लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू सर, थैंक यू अनिल सर। Thank you very much, sir. Thanks a lot, sir. Thanks a lot, and we wish us. Thank you, Payal ma'am. Thank you, Anil sir. Thanks for you so such a much. great deliberation. Thank you, Mani ma'am. Thank you, Ankit. Bye. Thank you, sir. Okay. Thank you all. Bye bye. Okay, sir. Sir, we wish a Bye-bye. speedy recovery for your son. Thank you very much. Yes, Thank you. sir. I'll connect. We will connect on Monday, and I will just take a call first. Sure, sir. Sure. Okay.
Thank you, sir. Thank you. Thank you. The meeting Thank you. now. Bye. Have a good day.